Okay, why I'm going to ask you some questions in between. Yes, so this is where we begin in the last lecture. We studied one very important formula, which was first noticed. Actually, na Balmer का जो भी था ना, that was not based on this formula. उसका observation था. So Balmer was the first person to observe spectrum. If you remember spectrum, it's the pattern that we get on the screen. So Balmer was the first person. क्योंकि visible range है ना भाई Balmer का, तो Balmer को दिखा कि कलर का पैटर्न क्रिएट हो रहा है 1 2 3 4 5 ऐसा. And he was like, gases show some interesting behavior. But later on, one scientist actually found out this general formula. Then they realized by changing the value of N1, that is lower orbit, I'm repeating, by changing the value of N1, you could actually get multiple patterns, multiple series. तो हम लोगों ने different series पढ़ना चालू किया. ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, we'll see to it today. But वो उसके ऊपर there are multiple series that we study. जैसे कि for example Lyman series. For Lyman series, N1, that is first orbit, is 1. So instead of N1, we put 1 and we get this formula. N2 must be the higher orbit. And that is why instead of N2, you put values like 2, 3, 4, 5, and so on. We notice that Lyman series is obtained at ultraviolet region. So that is why you cannot see it properly. आप उसको नहीं देख सकते UV region को. You need special equipment so that you could actually see this particular series. Okay, let's now talk about Palmer series. Okay, Purnima, what is N1 का value for Palmer? Lower orbit का value क्या होता है? 2. Very good. So for Balmer, lower orbit का value होता है 2. So instead of this N1, we are gonna write 2. तो जब हम लोग 2 लिखेंगे तो obviously उसके बाद N2 क्या होगा? Higher orbit, that is 3, 4, 5, etc. You will notice that there is one minimum wavelength जिसको हम बोलते हैं series limit. Like see, इसके पीछे कुछ नहीं होगा. You won't get any single wavelength for Balmer series. तो Balmer series का lowest limit है, इसके पीछे कुछ नहीं. Okay, now that particular limit is calculated when we put N2 का value as, Aditi, what do you put N2 का value as to find out series limit? We put N2 का value as something to get series limit. Yeah, Nitya, correct. So infinite. Yes, very good. So we put it as infinity to get the final answer. Okay. So we put N2 का value as infinity to get this particular series limit. तो अभी समझो आपने N2 के जगह infinity डाला, तो infinity is 1 or 1 upon infinity is nothing but 0. So we will get this entire term as 0. तो अपने को क्या मिलेगा? अपने को मिलेगा R by 4 equals to 1 by lambda. So if we take reciprocal, then we will get lambda equals to 4 by R. तो ये हुआ बाल्मर का सीरीज लिमिट. इसके ऊपर हम लोगों को क्वेश्चन भी करने हैं, समझ रहे हो, नीट लेवल के. नेक्स्ट, सॉरी, पार्शियल सीरीज. फॉर पार्शियल सीरीज N1 का वैल्यू 3, बाकी सारा फंडा सेम है. ओके, नाउ यू टेल मी रिया, व्हाट इज द N1 का वैल्यू फॉर पी फंड? बिंदेश्वरी, फ्रंट कैमरा ऑन करना. पी फंड सीरीज के लिए N1 का वैल्यू क्या होता है? अनम्यूट करें. कितना? 4. ओके.
बिंदेश्वरी फ्रंट कैमरा ऑन करना है। खुशबू, पी फंड के लिए N1 का वैल्यू क्या होता है? सर 5। 5 होता है। और ब्रैकेट इट्स 4। रिया, आर यू पेइंग अटेंशन? लास्ट लेक्चर का भी तेरा ध्यान नहीं है, तू पढ़ नहीं रही है, रिवाइज भी नहीं कर रही है। दिस विल बी एक्चुअली अभी समझेगा नहीं तेरे को, बाद में बहुत तेरे को रियलाइजेशन होगा। Then we studied about 3 postulate of Bohr's. First postulate was like this: the electrons revolve around the nucleus in circular orbit. As electrons revolve around nucleus in circular orbit, and for circular motion we require centripetal force. Therefore, it is true that centripetal force कोई ना कोई तो provide करना चाहिए, and that force is provided by electrostatic force. So you already have studied this force. नरेश सर ने आपको सिखाया है ये 1/4 pi epsilon naught. Okay, then उसके बाद Q1 Q2 upon R square होता है. But as proton and electron के बीच का interaction है, because we are basically talking about electron revolving around nucleus. तो electron किसके वजह से attract होता है? तो इधर पे जो प्रोटॉन है उसकी वजह से. So that means मेरा first charge will be of proton, my second charge will be of electron. So we put E. We don't put minus E while solving numericals. Okay, तो फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग माइनस साइन नहीं बनाते यहाँ पे जब भी मैग्नीट्यूड में लिखते हैं. Now what is this Z over here? Wait a second. What is this Z over here, Diya? Z क्या है? Atomic number. Atomic number. What does that represent actually? मतलब ठीक है एटॉमिक नंबर, बट एटॉमिक नंबर मतलब क्या? मेरे को तो केमिस्ट्री आता नहीं, तो मेरे को नूब वाला लैंग्वेज. Atoms atomic number. हाँ, एटम्स मतलब बेसिकली हीलियम के अंदर कितने एटम्स है, ऐसे ना? Yes sir. यस ना? हीलियम के अंदर कितने एटम है ये बताता है ना Z. Sir, no sir. The atomic number of that atom, that helium atom is 2. That. हाँ तो बट व्हाट इज एटॉमिक नंबर? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग. आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई डोंट वांट सरफेस का नॉलेज, इसलिए तो मैंने एप्सिलॉन नॉट के ऊपर से आपको इतना घुमाया. मेरे को इन डेप्थ नॉलेज चाहिए अगर आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है. वर्षा, व्हाट इज दैट Z रे? Atomic number मतलब number of electrons. हाँ, okay, you could say it is number of electrons because number of electrons is exactly equals to number of proton. Okay, but in general we say Z मतलब number of protons. So you are not wrong, Varsha. Okay, correct है. Your number of protons. Number of electron when element should be neutral, sir. The number of protons should be exactly equals to number of electrons. तो ये Z क्या होता है? Directly number of protons होता है. Okay, तो for example, for helium, it will be 2 because helium has 2 protons. For uranium, it is 92 because uranium has 92 protons and so on. Okay, so that is why we need to put this Z, क्योंकि कुछ atoms में सिर्फ एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता. अगर मैं instead of this particular Z, if I would have written it like this one, मतलब E into E upon Rn square, उसमें मजा नहीं आता. मजा मतलब in the sense how would you enjoy this particular thing? क्योंकि ये सिर्फ force between one proton and one electron, correct? And as I already discussed, uranium has 92 protons, so you need to respect that Z over here, and that is why I have respected. तो जब आप इसको 92 से multiply करते हो तो आपको total force मिलता है between total electrons and total protons. Okay, so you modify this particular thing. Over here I have written N because it indicates that orbit. So if it is third orbit, I would write it as V3. Then that would indicate velocity of electron in the third orbit itself. Okay, so let's move on with the next concept, second one. Now there was one problem with the Maxwell, there was a problem with the Rutherford theory that electron actually in real life doesn't spiral down. But Rutherford was not able to explain कि इलेक्ट्रॉन ये चपली क्यों नहीं बनाता. ये Rutherford को नहीं explain करता. चपली है ना ये, yes or no? वो चपली क्यों नहीं बनाता, that is spiral path इलेक्ट्रॉन क्यों टेक नहीं करता, he was not able to explain. तो बोर ने क्या बोला
electron will not spiral down if it is revolving around in stable orbit. तो जब तक इलेक्ट्रॉन स्टेबल ऑर्बिट में रहेगा, it won't lose its energy. Now that stable orbit must obey a certain condition. Okay, and that certain condition is what, Sejal? Book बंद करो और बताओ. What is that condition? ये stable orbit. For lecture. क्या क्या क्या? So I wasn't there for your last lecture. अरे यार कितना absent रहेगी तू यार, मेरे को बता. कितना मैं absent आपके रहेगी? एक ही लेक्चर में absent थी. उसके पहले भी एक लेक्चर में थी लास्ट मंथ, मेरे को याद है तो. ओके आकांक्षा, डोंट रीड इट, टेल मी व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज दैट कंडीशन. क्वेश्चन वापस बोलो ना. मैंने बोला कि स्टेबल ऑर्बिट का कंडीशन क्या है. व्हाट इज बोर्स सेकंड पोस्टुलेट इनडायरेक्टली. यस मानसी. So don't remember. Don't know. Okay, Pranjal. श्रद्धा, शीतल, पुरोहित, निकिता, झलक, त्रिशा, महक. Okay, see, you know the rules of my lecture. आप जो भी जितने लोगों ने भी कैमरा बंद किया, मैं बार बार नहीं बताऊंगा. सर सीधा बाहर करो, सीधा मतलब सीधा बाहर. अभी लास्ट 2 मिनट दे रहा हूँ, जिसको कैमरा ऑन करना है करो, और अगर सेल्फ रिस्पेक्ट है नहीं जाना चाहते तो खुद निकल जाओ. हाँ शालू, कैन यू टेल मी द कंडीशन. अरे इधर लिखा है फिर भी नहीं. एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू n, वो फिर h2 upon 2 pi. वेरी गुड. तो शालू के डाउट्स कैसे भी हो, बट वो पढ़ के आती है, ये इम्पोर्टेंट. बराबर कि नहीं? No, you could ask me doubt. I'm just joking. मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं. तो एंगुलर मोमेंटम इज n times h upon 2 pi. That is angular momentum माने अपना mvr. If it becomes equals to nh upon 2 pi, then we would definitely get a stable orbit. अभी even though this condition was given by Bohr was not sure कि भाई ये सही है कि मतलब कैसे आया formula, how he developed the formula, that is still a mystery. He was not able to actually tell people कि how exactly got into root of it. So that mystery remained for a few years. So L equals to nh upon 2 pi is the condition. Now the n over here is known as principal quantum number or orbit number. Okay. Next, whenever an electron is in higher orbit and it wants to come down to lower orbit, it will lose some amount of energy. Whenever an electron is in higher orbit and it wants to come down, it will lose some energy in the form of light energy or in the form of photon. Okay, जैसे देखो कि इलेक्ट्रॉन के पास initially was energy of 100 joule, but lower orbit is at 80 joule. So lower orbit won't accept this electron until and unless this electron lowers down its energy to 80. जब तक इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी 80 नहीं करेगा, तब तक ये ऑर्बिट उसको बोलेगा मैं तेरे को एक्सेप्ट नहीं करूंगा. बोलो. स्पेसिफिक ऑर्बिट के लिए स्पेसिफिक एनर्जी रहेगा ना. यस करेक्ट. जैसे फॉर एग्जांपल फॉर दिस ऑर्बिट इट इज 80 जूल. ये एज्यूम्ड वैल्यू है, सच्चे में 80 जूल नहीं होता. द वैल्यूज आर मच स्मॉलर, लाइक 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 80 भी नहीं होता. फॉर फर्स्ट ऑर्बिट इट इज माइनस 13.6 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जैसे एनर्जीज होते हैं नेगेटिव में एंड ऑल दैट. ओके शाफिया, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा ऑन कर. सेम फॉर निकिता ताड़ी, शीतल. बैक कैमरा ऑन है, फ्रंट ऑन करो. सर मेरा फ्रंट कैमरा ही ऑन है. क्या? मेरा फ्रंट कैमरा ही ऑन है, बैक कैमरा नहीं ऑन है. ओके किसका बट? सर मेरे को सर दिख नहीं रहा. हाँ, बोल भाई बोल.
सर मी तुम्हाला मेसेज केलाय. ए, काय तुझे रिझन्स असतात, अजिबात नाही चालणार. कॅमेरा ऑनच ठेवायचा. नो, आय हॅव ऑलरेडी अलाउड यू 2 to 3 weeks. No, not allowed in my lecture from this week. तो ये 100 जूल है. 100 जूल से 80 जूल. नाही ते काम कर, लेक्चर मधून जा निघून आणि युट्यूब वरती व्हिडिओ बघ. 100 जूल टू 80 जूल. तो उसने क्या किया, 80 जूल आने के लिए उसको कुछ एनर्जी लूज करना पड़ेगा ना. सो इट लूजेस दैट एनर्जी लाइक दिस, ऐसे लूज कर देता है. एंड इट लूजेस एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फोटोन, मतलब लाइट एनर्जी में लूज कर. तो डोंट यू एग्री विथ मी, उसने 20 जूल का नुकसान कर दिया खुद का. मतलब बेसिकली उसको लूज करना ही है क्योंकि उसको लोअर ऑर्बिट में आना. तो दैट मीन्स वी कैन राइट दैट 20 equals to 100 minus 80. Now 20 was our h nu जो हमने लॉस किया है. 100 was जो हायर ऑर्बिट है उसका एनर्जी था, that is E into, and 80 was lower orbit का एनर्जी, that is EM. So this is how we got this particular thing, that is h nu equals to En2 minus EM. Okay, ये हो गया आपका फॉर्मूला. Done with this. Now let's move on with the next concept, radius of orbit. तो उसके लिए हम लोगों ने दो पोस्टुलेट यूज किए थे, हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था, and we got till this particular result. Now over here there are some constant that we considered. Like for example, we have heard about this h, we have heard about this epsilon naught, we have heard about this m, we have heard about e. मतलब जो भी constant चीजें रहेंगी, no matter which element you take, which orbit you take, I have taken them as constant and then converted them into proportionality. तो आपका Rn क्या हो गया, proportionality में convert हो गया, जो भी है मतलब बीच में constant जो है. So if you eliminate those constant, you get a relation, a beautiful relation that you have to remember, that is this. So Rn is directly proportional to n square and inversely proportional to z. I've eliminated all those unnecessary terms and converted them into proportionality. Okay, but अगर समझो हमने दूसरा अप्रोच लिया, like for example if I'm talking about first orbit, तो मैं फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 1 डालूंगा, तो यहाँ पे n क्या जाएगा, 1 आ जाएगा. देन मैंने बाकी सारा डेटा पुट किया, जैसे h है, एप्सिलॉन नॉट है, पाई है, m है, z स्क्वायर. सो आई गेट रेडियस विद दिस फॉर्मूला, दैट इज 0.053 by z. और यू कुड से आपने मोर स्टैंडर्ड अप्रोच ऐसे याद रख सकते हो, अगर आपने z n स्क्वायर कंसीडर किया तो दैट इज Rn 0.053 z upon n स्क्वायर. What my point is, proportionality रिमूव करोगे तो ये कांस्टेंट मिलेगा, proportionality रिमूव करोगे तो 0.053 मिलेगा, and the answer that you would get will be in nanometer. तो आंसर आएगा नैनोमीटर, something like that. Okay. मैं एक काम कर, तेरे को आइडिया देता हूँ. अटेंड अ लेक्चर ऑन यूट्यूब, सेम थिंग यू विल फाइंड इन यूट्यूब. अभी तू एग्जिट मार मस्त एकदम से. Sadhvi, turning on the camera or not? I'll turn it on. आदित्य कैमरा. आदित्य यादव, आर यू देयर इन लेक्चर? हाँ सर, ऑन कर रखा सर.
धवल सोलंकी, धवल सोलंकी, धवल सोलंकी, are you there in lecture? पुरोहित, पुरोहित, now this looks good. We were done with this formula. Same way we got the formula of velocity using postulate, like z is square upon 2 epsilon naught hn. Then we wrote it like z by n etc etc. तो अपने को क्या याद रखना है? We need to remember this important relation, that is Vn is directly proportional to z by n. Then let's talk about energy of electrons. तो energy of electrons में आपने total energy, potential energy, kinetic energy etc etc पढ़ा, and you got till this formula. En equals to minus 13.6 z square upon n square. Now I will tell a certain someone to find out something and usko find out karna padega. Okay, Ali, you have to tell me what is energy for lithium's second orbit. Shivangi Pal, you have to tell me what is energy for helium the first orbit. Sakshi, you have to tell me energy for ions third orbit. You can use calculator, but you cannot use Google. Nitesh, energy for uranium the fourth orbit. No, I'm not going to tell you their atomic number. Go figure it out on your own. Till you figure out, I will have a little snack. बाकी के लोग देखो मत कि मेरे को नहीं बोला है, आप भी सॉल्व करो, उनको नहीं आया तो आपकी बैंड बचेगी फिर। एक अपना लिथियम का सेकंड ऑर्बिट था, एक हीलियम का फर्स्ट ऑर्बिट था, और क्या था? ये क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा? लिखा तो है। अच्छा लिखा है, सॉरी देखा नहीं। अब वो बाजू में जो दूसरा सेकेंडरी मोबाइल है उसको यूज कम कर तो देखेगा। अरे सर, मैं स्क्रीन पे आपका स्क्रीन बड़ा करके रखा है मैंने। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, मैंने ऐसे ही टॉन्ट मारा, मतलब लाइक पिछली बातों के ऊपर, नॉट नाउ। सी नेहा इज स्माइलिंग, नेहा ने एग्री किया इस बात। सर मैंने आपके उस पर मतलब मैसेज किया। ओके कोई बात नहीं, नहीं तू ओरली बता सकता। नहीं नहीं रहने दे, 2 मिनट। साहिल, स्क्रीन को देखना नहीं है, सॉल्व करना है। तो मैंने भी मैसेज किया। ओके, सो दिस वन इज डन। This one is done. Let us. Shafia, you are gonna solve this one. Uranium वाला। दिशा गौड़, हीलियम वाला। प्रांजल, can you write with your arm? अच्छा, लेफ्ट हैंड
डैमेज था क्या? ओके हाँ। ओके अली, तूने फर्स्ट वाला सॉल्व किया ना? हाँ ओके, और किसको बोला था मैंने फर्स्ट वाला सॉल्व करने के लिए? अली ने मुझे एक आंसर भेजा है। शाहीन, क्यों, व्हाई डोंट यू वेरीफाई कि अली का करेक्ट है कि नहीं? अली ने एक आंसर, हाँ, तूने, तेरा भी आंसर भेज फर्स्ट का, इसका एनर्जी फॉर लिथियम, इसका आंसर भेज। हाँ, कोई हम लोग चेक करेंगे अली बराबर कर रहे हैं कि नहीं, टाइम पास सर। करेंगे। और बोल ना। सर वो एग्जाम में मतलब बताएंगे नहीं क्या, जो एलिमेंट जैसे Fe दे देंगे, यूरेनियम दे देंगे, तो उनका एटॉमिक नंबर नहीं देंगे? मतलब लाइक अगर समझ स्पेसिफिक एटम्स होंगे तो नहीं नहीं, बट जहां तक मैंने देखा है ना, कि एक बार ना एक क्वेश्चन आया था, नॉट फ्रॉम दिस चैप्टर, न्यूक्लियर चैप्टर, और ना उन्होंने ना एक न्यूक्लियर रिएक्शन दिया था, फिजन वाला। ओके, वो रिएक्शन तो हम लोग स्कूल में भी पढ़े थे, बट स्टिल दे गेव ऑल द एलिमेंट्स इंटैक्ट, मतलब लाइक पूरा का पूरा डिटेल में दिया था कि क्रिप्टॉन निकलता है तो क्रिप्टॉन का जेड कितना होगा, ए कितना होगा, सब डिटेल में दिया। और इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था ना नीट में, तो उसमें भी उन्होंने ऐसा दिया था, एक एलिमेंट है जिसका एक्स ये है और ये इतना है और ये इतना है, मतलब दे प्रोवाइड इट, ओके, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बट अभी के लेवल के लिए तो आपको मालूम होना चाहिए ना कुछ बेसिक एलिमेंट का, जैसे फेरस फेमस है बहुत, यूरेनियम, लिथियम का कितना होता है? 3. 3। तो देखो, तो आपको पता ही है, एंड दिस वाज योर हिंट। जेड का वैल्यू 3 है, और कौन सा ऑर्बिट बोला है? सेकेंड ऑर्बिट। चारों के चारों ट्राई करो, अगर आपका एक हुआ है मूव ऑन टू सेकंड, सेकंड हुआ है मूव ऑन टू थर्ड, थर्ड हुआ है मूव ऑन टू फोर्थ। आई एम गोना गिव यू 1 more minute। मेरे सारे हो गया, मैंने भेज भी दिया। वाह, अभी आ रहा हूँ, ऑफलाइन क्लासेस आ रहा हूँ, आप ही के सत्कार के लिए। कल है ना? आपने चॉकलेट भी नहीं दिया अभी तक। अरे यार, चॉकलेट ऐसा नहीं, आई डोंट वांट टू गिव यू, बट आई फॉरगेट एवरी टाइम। ओके, तो अभी ये टाइम तो आई विल डेफिनेटली ट्राई। नहीं नहीं, दिसंबर में लाना, अभी नहीं। बट तुम लोगों का मेरा लेक्चर रखा है तुम लोगों की क्लास पे? यस। ओके, आई न्यू इट। हाँ शाहिद, व्हाट इज योर आंसर? हाँ बोल आंसर बोल। भेजा आपको मैसेज पे। तूने भेजा? अभी अभी यस ओरली बताना कितना आया। 25.2। -25.2, राइट? हाँ सर, यस सर। अली, व्हाट वाज योर आंसर? 30.6। 30.6 करेक्ट है, मुझे भी वही आया। क्या किया सेम। शाहिद तूने? चलो लिथियम का मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ फॉर दोस्त माय स्टूडेंट जो भटके हुए हैं। तो बाकी के आप, मैं वेरीफाई करने ही वाला हूँ अभी आंसर जिन्होंने सेंड किया, बट बाकी के आप ट्राई करना है। ओके, तो अभी एनर्जी फॉर लिथियम का सेकेंड ऑर्बिट, so that will be E2, n के जगह क्या डालोगे? 2 इक्वल्स टू -13.6 इंटू जेड। लिथियम का जेड कितना होगा? 3। आप ही ने 3। बोला लिथियम का 3 होता है, तो जेड का वैल्यू 3 का स्क्वायर, एंड n क्या है? n का वैल्यू 2 है, ऑर्बिट नंबर 2, तो 2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -13.6 इंटू 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 1, that is divisible by, यस सर। फोर सर को 13.6 को 4 से कर दो सर डिवाइड। हाँ, 4 से divisible है, हाँ, 4 3 12 1 4 4 16, 3.4 टाइम्स 9, तो 36 3
-30.6 आया। 30.6 नहीं 33 30.6 यस सर। शाइन क्या गलती किया? सब कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया। आधे क्वेश्चन आप नीट स्टूडेंट्स के इसके लिए रॉन्ग जाते हैं क्योंकि कैलकुलेशन रॉन्ग किए। ओके, व्हाट वाज योर आंसर? साध्वी बोल रहा हूँ। साक्षी सर अभी चेंज किया मैंने, क्यों बोलो। चेंज किया? क्योंकि मैंने z² नहीं किया था, सिर्फ z ही लिया था। ना ठीक है, चलो बोल दो। 1021.5। 1021.5 बराबर। हाँ, ये कौन सा ऑर्बिट का एनर्जी है? थर्ड ऑर्बिट का। देखो थर्ड ऑर्बिट है और इतना एनर्जी है। अगर वो समझो फर्स्ट ऑर्बिट होता तो और ज्यादा एनर्जी होता वो। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिट्स ऑफ आयन। आयन के ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। एनर्जी देखो कितना है उसके पास। तो आपको इसको रिमूव करने के लिए प्लस पे एनर्जी देना पड़ेगा। दैट प्लस में जो एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करते हैं इट इज नोन एज डैश डैश जेनेटा। द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन इज tricky question. Nobody expects Spanish Inquisition. That's a meme, Nitya, if you don't know. बता जेनेटा, आपने क्या बोला अभी? Spanish Inquisition. Binding energy. Yeah, excellent, dear. It's binding energy. So if you need to remove the electron, you need to provide the energy plus. That is binding energy. हो गया? Okay. तो साक्षी का आंसर कितना आया था? 10 कितना रे? 21.5। हाँ, ये मैच हुआ किसी का? मेरा मैच हुआ। यस सर, यही हाँ, आया। वेरी गुड। तो ये 1021.5 है। रुको और बोलो मत बाकी के आंसर, जिसको पूछा उसको पहले बोलने दो। नितेश, व्हाट वाज द आंसर ऑफ दिस? हाँ बोल। ये -13.6 कांस्टेंट है। हाँ, दैट इज कांस्टेंट। ये दिख रहा है तेरे को क्या क्या हमने m e एप्सिलॉन नॉट 8 उसका कैलकुलेटेड वैल्यू है। हाँ। ये बताओ क्या हुआ रे नितेश? व्हाट इज योर आंसर? सर -7194.4। 7194.4। बाप रे। यूरेनियम का तूने Z कितना लिया? 92 एंड फोर्थ मतलब N कितना लिया? 4। कितना आया आंसर्स गाइस? यही है, सेम यही आया सर। होमवर्क में भी दिया था सर यही आया। नित्या का रॉन्ग हो गया। ओह माय गॉड। नेक्स्ट वन, एनर्जी फॉर ये किसको बोला था मैंने? हीलियम। वेरी गुड नितेश, वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड। ये किसको बोला था? हीलियम फर्स्ट ऑर्बिट। सब मेरे को बोला था। हाँ, क्या आंसर आया? -54.4। -54.4 54.4 आया। मुझे भी वही आया। हाँ सर, सेम। करेक्ट है सर। हो गया फिर। ये था आपका एनर्जी वाला कंसेप्ट। तो आई होप अभी आपको अच्छे से समझा है कि हमने कैसे कैलकुलेट किया। खाली z का वैल्यू पुट करना है, n का वैल्यू पुट करना है, देन वी आर डन। ओके, फिर हम लोगों ने देखा था ये वाला इंपॉर्टेंट सा ग्राफ। एंड इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ वी सॉ दैट कि हमने ना एनर्जीज निकाले। एंड दिस पर्टिकुलर ग्राफ इज स्पेसिफिक फॉर हाइड्रोजन। बाकी किसी के लिए नहीं है ये बना। इट इज ओनली मेड फॉर हाइड्रोजन। ओके, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन। बाकी हर एक गैस के लिए आपको ग्राफ डिफरेंट मिलेगा बिकॉज द एनर्जी विल बी डिफरेंट, है ना। जैसे कि अभी आपने देखा कि फोर्थ ऑर्बिट का या फिर हीलियम के लिए जो एनर्जी आता है फर्स्ट ऑर्बिट का वो कुछ और आता है। ये यहाँ पे -13.6 नहीं आता। तो -13.6 इज वैलिड। यस सूरज, -13.6 इज वैलिड फॉर हाइड्रोजन। ऐसे चलो, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ। तो लाइमन सीरीज कब दिखता है? जब लाइमन सीरीज में क्या होता है, तो आपके फर्स्ट ऑर्बिट 1 होता है। दैट इज व्हाई योर लिमिट्स और योर सीरीज विल एंड एट 1।
बाल्मर सीरीज में 2 होता है तो इट विल एंड एट 2, पास्शन में 3 होता है तो इट विल एंड एट 3 एंड सो ऑन. तो दिस इज हाउ यू गेट ग्राफ. ओके, तो ये ग्राफ मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, आएगा. नाउ take out your books, take out your pen, and let us begin with this particular topic. मेरे को अली रिमाइंडर किसने डाउट पूछा था? अखिलेश ने पूछा था. अखिलेश मेरे को रिमाइंडर देना डाउट्स के लिए. वो 2 डाउट्स मेरे जो है वो अली का था क्वेश्चन 14 और 41. हाँ 14 और आजकल तुम दोनों का दोस्ती बहुत अच्छा हो गया है. मतलब एक दूसरे के लिए बोल रहे हो, ग्रुप में भी होमवर्क का बोल देते हो. ठीक है, बट क्यों कितना स्कैम करते हो रे तुम लोग कांदिवली ब्रांच वाले? लाइक आपको पता है अंधेरी ब्रांच वालों में से एक का भी कंप्लेंट नहीं आया होमवर्क का. आप अंधेरी ब्रांच में हो नहीं, बट इफ यू स्टडी ना तो एक का भी कंसेप्ट नहीं आया. आई नो श्रेया दैट यू हैव जस्ट स्लेप्ट. अच्छा नहीं लग रहा है क्या? तबीयत ठीक नहीं है तेरा? तबीयत ठीक नहीं है तो यू कैन रेस्ट, अदरवाइज नहीं. सीधा प्रॉपर बैठ के लेक्चर अटेंड करना. ओके, तो अंधेरी ब्रांच का होमवर्क देखो, इट इज ऑलवेज कंप्लीट. और मेरे को अंधेरी ब्रांच को आई एम नॉट एक्चुअली कंपेयरिंग और ऐसा, मतलब वही कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, बट जाने दो क्योंकि जो सच है वो सच है. मेरे को आपको रिमाइंडर डालना पड़ा कि भाई होमवर्क सेंड करना चालू कर. अंधेरी ब्रांच वालों ने कल रात से ही होमवर्क सेंड करना चालू कर दिया था. एंड अभी कांदिवली में मेरे रिमाइंडर के बाद भी कितने लोगों ने भेजा होगा? मे बी गिन चुन के 6-7 लोगों ने भेजा होगा. सर होमवर्क का टाइमिंग 11 बजे तक का था ना आज के दिन का. आज 11 बजे इसलिए तक किया था. ही नहीं. इसके लिए मैंने किया ही मतलब. हाँ ओके ठीक है, बट फिर भी मैंने नोटिस किया ही है कि होमवर्क है ना वो अंधेरी ब्रांच वाले ऑन टाइम एंड एकदम प्रॉपरली करते हैं. कांदिवली अभी भले वो बड़बड़ ज्यादा करने तो वो, बट जाने देते, वो विल इग्नोर दैट पर्टिकुलर फैक्ट फॉर नाउ. बट होमवर्क तो करते हैं. तो ऐसे ही आप भी अटेंटिव रहो, बिकॉज आई वांट कि मेरे दोनों, मतलब दोनों भी आप ही मेरे ही हो ना. तो आप जितना अंधेरी वाले अच्छे से होमवर्क करते स्टडी करते हैं, उतना ही कांदिवली वाले भी स्टडी करो. दैट्स व्हाट आई वांट. ओके चलो, तो एज पर बोर्स थर्ड पोस्टुलेट, तो थर्ड पोस्टुलेट में ये लिखना चालू करना है अपने को. याद होगा आपको मैंने सिखाया था थर्ड पोस्टुलेट क्या था? हायर सर. ऑर्बिट का एनर्जी माइनस लोअर ऑर्बिट का एनर्जी इक्वल्स टू h. अभी इफ यू रिमेम्बर जो बोर का फॉर्मूला था ना कुछ वो इस तरह था एनर्जी का. दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल एनर्जी डियर. दैट इज व्हाई इट इज इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव. तो टोटल एनर्जी वाज माइनस m z स्क्वायर e raised to 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, और यहाँ पे था n, दैट इज नंबर ऑफ ऑर्बिट. बट अगर समझो आप यहाँ पे En2 लिख रहे हो, दैट इज एनर्जी ऑफ N2 ऑर्बिट. सो इंस्टेड ऑफ दिस पर्टिकुलर n यू वुड राइट N2. एंड अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी बोल रहे हो, सो दैट मींस इफ यू आर टॉकिंग अबाउट En1 देन ओवर हियर यू विल राइट इट एज N1. समझा? तो इसीलिए En2 के जगह ये लिखना है एंड En1 के जगह ये लिखना है. Include the bracket so you won't get confused later on when you refer this derivation. मैंने क्या किया, जहां पे भी एनर्जी में n था, अगर मैं n2 की बात कर रहा हूँ तो मैंने n2 डाला. देखो n2, और जब मैं n1 की बात कर रहा है मैं n1 डाला. फिर बीच में माइनस साइन है, ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस, तो आपने प्लस लिखा. फिर आपको क्या करना है, ये जो न्यू दिख रहा है न्यू, आपको पता ही है ना, हमने ड्यूअल नेचर में पढ़ा था h nu equals to hc by lambda होता है. yes or no, do you remember it? सर. Yeah. Yes. h nu के जगह देखो मैंने क्या लिखा है, रीजन भी लिखो आगे ब्रैकेट में. h nu के जगह यू हैव रिटन hc by lambda. ओके, फिर उसके बाद एक इंटरेस्टिंग सा स्टेप करना है. हम क्या करेंगे, ये यहाँ से कॉमन निकालेंगे. क्या क्या कॉमन निकल रहा है देखो. तो वी कैन टेक आउट कॉमन m z e देन 8 एप्सिलॉन नॉट h, सब निकल गए. और जब निकल जाता है ना कॉमन, तो मुझे कुछ इस तरह से मिलता है. देखो पहले तो यहाँ पे माइनस N2 बचा, सो यू कुड राइट इट एज
माइनस 1/n2 स्क्वायर, फिर इधर से क्या बचा प्लस 1/n1 स्क्वायर। बट अभी सीन क्या होता है कि वो दिखने में अच्छा नहीं लगता, तो मैंने क्या किया, सिंस इट डजंट लुक गुड, मैंने अरे मैंने ये जो टर्म है ना, ये प्लस वाला, उसको पहले लिखा। तो दिस विल लुक लाइक दिस, hc by lambda equals to am z square e raised to 4 upon 8 epsilon naught square h square 1/n1 square minus 1/n2 square. Now once it is done, what I want, मैं 1 by lambda को एक तरफ लिखना चाहता हूँ। तो ये जो भी आपको hc दिख रहा है, hc मैंने उसको ये साइड पे शिफ्ट किया। So when I shift that, see what is happening ना, जब मैं h को यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ तो क्या होता है, देखो वर्षा, h square into h will be h cube, है ना, h square into h will be h cube, and जो c पहले यहाँ पे था वो यहाँ पे आके आपको ये स्टेप मिलेगा। क्लियर? Yeah. Okay, then this particular entire value of constant is known as Rydberg constant. इसको हम बोलते हैं Rydberg constant. We denote it by capital R. वैभवी कैम, अवनीश कैमरा, प्रांजल कैमरा, मानसी गुप्ता कैमरा। तो आपको यहाँ पे क्या मिला? ये भी सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है क्या? कौन सा वाला? वरना फिर जेड स्क्वायर वापस से, हाँ जेड स्क्वायर बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना दूसरे आइटम के लिए। यस, दूसरे आइटम के लिए जेड स्क्वायर बाहर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मैंने देखो जेड स्क्वायर लिखा है जनरल फॉर्मूला, समझा? मैंने जेड स्क्वायर यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है, देखो डियर, मैंने me raised to 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c लिखा है, मतलब जेड स्क्वायर को बाहर लिखा है। तो ये कांस्टेंट जो है ना, इसको आर बोला, उसको बोलते हैं राइडबर्ग कांस्टेंट। इट्स द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, इट्स द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने ये डिराइव किया है, राइडबर्ग कांस्टेंट। ओके, इसका यूनिट क्या होता है पता है राइडबर्ग कांस्टेंट का? पर मीटर होता है, पर मीटर। नाउ अगर आप देखोगे तो जेड स्क्वायर अभी भी अपना सिस्टम में है ना, तो आप जेड स्क्वायर यहाँ पे लिखो। ओके, महक, व्हाट इज जेड का वैल्यू फॉर हाइड्रोजन? I'm not aware. जेड का वैल्यू, ओ माय डियर, तेरे को अरे Z अरे पता है सर 1. हाँ, तो z का वैल्यू इज 1, सो यू आर गोना पुट z एज 1। तो हाइड्रोजन के लिए जब आप z 1 पुट करते हो, ये लिखो अभी, हाइड्रोजन के लिए z आप 1 पुट करते हो तो व्हाट यू आर गोना गेट, यू आर गोना गेट दिस वैल्यू। क्या देखा है क्या कहीं पे ये फॉर्मूला? हाँ ऊपर देखा था। ऊपर मतलब यहाँ पे देखा था, यहाँ पे वही, कहाँ पे ऊपर देखा था? कहाँ पे देखा है फॉर्मूला आपने? 1/λ इक्वल्स टू न्यू नंबर है ना वो ऊपर वो लेमन सीरीज वाला सीरीज वाला हाँ, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाश्चन सीरीज। बाल्मर ने ही जस्ट ऑब्जर्व थिंग्स। बाल्मर को क्या लगा कि अच्छा दिख रहा है पैटर्न एंड ऑल दैट, बट ही वाज नॉट अवेयर ऑफ द फॉर्मूला। इट वाज बोर जिसके फॉर्मूला की वजह से हमें एग्जैक्ट रिलेशन पता चला कि बाल्मर जो प्रैक्टिकली देख रहा है उसके पीछे कोई तो छुपा है, दैट इज दिस फॉर्मूला। एंड उसके बाद लाइमन, फिर डिफरेंट सीरीजेस आना चालू हुआ, बिकॉज यू गॉट द आइडिया ना कि कैसे देखना है, एंड सारे सीरीज पता चलने लगे। इज इट क्लियर नाउ कैसे पता चला फॉर्मूला? बोर के फॉर्मूला को मॉडिफाई किया एंड देन वी गॉट दिस रिलेशन 1/λ इक्वल्स टू r। तो वो फॉर्मूला में z क्यों नहीं है साहिल? हाँ, वो फॉर्मूला में z क्यों नहीं है? आई एम आस्किंग यू समथिंग। वो यॉर्निंग कर रहा था बीच में, फुल प्रोसेस में था, लेंदी यॉर्निंग में था, बीच में बोल दिया, बेचारा डर गया। आधा यॉर्निंग तो उसने अंदर ही दबा दिया हो। हाँ बोल साहिल। मैं कैमरा, मानसी गुप्ता आप कैमरा। स्क्रीन ऊपर कर दो ना, तब तक मैं लिख सकती हूँ।
ये ले, एक मिनट। अरे मारो चलो। हाँ अभी दिख रहा है प्रॉपर। या चलो लिखो जिसको लिखना है वो। बट लाइक ना अगर तुम लोग देखोगे ना तो दिस इज माय मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ ऑल द 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स। देयर इज अ सर रीजन। हाँ बोलो। सर जो आपने ब्रैकेट में वाला लिखा ना E1 का जो लिखा है उधर हाँ उधर h स्क्वायर कर दो ना। कहाँ पे बोल रहे हो तुम? Second step. सर सेकंड स्टेप में ही उधर हाँ h स्क्वायर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया वो। ओके एनी वन ऑफ यू हैव डाउट इन दिस? किसी को कुछ प्रॉब्लम है? No. डन। नो। ओके पुरोहित तू कैसे आ गया लेक्चर में? दूसरा अकाउंट से एंट्री मारा लगता है। ठीक है आ जा, अभी बैठ जा, कैमरा ऑन रख, कोई बात नहीं। उस दिन कोई तो रहा एक लेक्चर में मेरे, पहले था कैमरा ऑफ किया थोड़ी टाइम के लिए लाइक 20-25 मिनट एंड देन दैट पर्सन केम बैक। तो लाइक जाने से पहले ऐसे लाइक नींद से कैसे उठते वैसे था, आने के बाद एकदम टिप टॉप। मैं समझ गया 20-25 मिनट में नहा लिया। मतलब तुषार सर पढ़ा रहे पढ़ो पढ़ो, मैं मस्त नहा के आता हूँ 20 मिनट में। बट आई डिड नॉट कमेंटेड ऑन दैट पर्सन। जरा जाने दो अभी। हम लोग उसको मिस्ट्री रखते हैं, कौन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये क्या फिजिक्स लेक्चर, बस एकदम नहाने का, एंजॉय करने का। ओके सर अभी भी मैं फोर्थ स्टेप पे नहीं, सिक्स स्टेप पे थे, रुको ना। अच्छा लास्ट नीचे दिख रहे नीचे। थे क्या तुम लोग? तो क्या? मेरे को लगा साइड बाय साइड लिखते हो, तो अच्छा आप बाद में लिखते हो क्या? दिशा पिंगले, आई हैव नॉट आस्क्ड यू एनीथिंग। पूछू क्या कुछ तुझे? पूछो। हाँ ये मेलेडी क्या कहा आपने? मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों? तो सोच रही है, कैलकुलेट कर, पूछ रही है क्या किसी को मेलेडी चॉकलेटी क्यों है? कुछ भी सर। नहीं अरे नहीं नहीं। नहीं चॉकलेटी नहीं है मतलब। अरे तूने ऑफ कोर्स है, बट अभी वो है तो है, मैं क्यों पूछूं? डन। डन चलो। एक सम है, लोग सॉल्व नहीं कर रहे, टेक इट एज अ होमवर्क। ओके जस्ट क्वेश्चन लिखना, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं शो कर रहा हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, बट आई थिंक इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। यू गाइस आर स्मार्ट, होशियार हो यार। मैं इसको कॉपी करता हूँ होमवर्क में, तो रुको मैं होमवर्क ये ऐसे बोल ना। इधर भी n2 का वैल्यू मतलब इंफिनिटी लेना है कि मतलब वो जो 2 के बाद लेने का 1 के बाद लेने का वैसा? वैसे इंफिनिटी कब डालेगी तू? इन केस ऑफ सीरीज लिमिट। अरे समझे। सीरीज लिमिट जब हाँ तैयार हाँ करेंगे समझे तो समझे। हाँ।
बैच नी। अच्छा, हाउ वाज योर पेपर रे? रोटेशनल के आए अच्छा। सम्स? फिजिक्स बहुत अच्छा था इस बार। नहीं, बहुत बेकार था। ये पागल। अच्छा था। सच्ची में बेकार था? हाँ सर, सर इस कितना बार नेगेटिव, अच्छा कितना था। नेगेटिव। अच्छा था सर। अगर मैं बायो पढ़ी होती ना तो ऊपर आती। मैंने बायो पढ़ा ही नहीं, मैंने फिजिक्स पढ़ा पढ़ के नहीं गई। तो गंदा था फिजिक्स। हाँ सर, फिजिक्स गंदा ही था, मैं भी हूँ। पढ़ा नहीं था मैंने। मॉड्यूल पढ़ा होता ना तो अच्छा जाता, गारंटी। मॉडल पढ़ के नहीं आते, आप क्या करेंगे? फर्स्ट हो गया ओके, तो आपको लाइक सेपरेटली होमवर्क लिखने की जरूरत नहीं। अभी सुनो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट 3 लाइंस इन पार्शियल सीरीज। तो आपको क्या करना है, पार्शियल सीरीज। अभी पार्शियल बोलेंगे तो पहले तो जनरल फॉर्मूला लिखोगे आप, बराबर। और आगे देखो, ध्यान से देखो, वो कौन सा एटम बोल रहे हैं वो भी आपको देखना है, क्योंकि अगर वो बोल रहे हाइड्रोजन एटम तभी आप वो Z के वैल्यू को 1 कर सकते हो, बिकॉज दिस इज नॉट योर इन जनरल फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर हाइड्रोजन। इन जनरल फॉर्मूला में Z² आता है, बराबर। और हमने यहाँ पे Z को क्या कंसिडर किया, 1। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एटम है। एंड N1 को क्या कंसिडर करना है, 3, क्योंकि पार्शियल सीरीज है। फिर उसके बाद आप देखो ना, जो N2 है उसको हम लोग 3 के ऊपर का नंबर लेंगे, दैट इज फर्स्ट यू आर गोना पुट 4। तो जैसे आप 4 पुट करोगे एंड R का वैल्यू आपको अभी पता चल गया है, रेडबर्ग कांस्टेंट। ओके, तो रेडबर्ग कांस्टेंट होता है 1.097 into 10⁻⁷। दिस विल बी प्रोवाइडेड इन द एग्जाम, डोंट रिमेम्बर इट, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, दिस विल बी प्रोवाइडेड। सो यू विल गेट द फर्स्ट सीरीज का वैल्यू λ1 मिल जाएगा। फिर सेकेंड में N2 का 5 डालो, यू विल गेट λ2। फिर N2 का 6 डालो, यू विल गेट λ3। मतलब N2 का वैल्यू 4, 5, 6 पुट करते जाओ। इज इट क्लियर? समझा कैसे सॉल्व करना है? यस या 1.097 into 10⁻⁷, it's not lambda actually। हो गया। नेक्स्ट वाला, लिमिटेशन ऑफ बोर्स एक्सपेरिमेंट, कि बोर के एक्सपेरिमेंट में एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ। अच्छा, बट बिफोर वी गो इनटू दिस, लेट अस सॉल्व। चार्जिंग खत्म। फॉर चेंज लेट्स सॉल्व आपका वो वाला क्वेश्चंस, क्या बोलते हैं जिसमें डाउट था, वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पीडीएफ का। मेरे को उसका क्वेश्चन का एसएस भेजो ना कोई तो। अली भेजेगा क्या डायरेक्ट एसएस? अखिलेश गया कब से भेजेगा। पीडीएफ भेज दिया ना तूने? किधर गया? रुको एसएस भेज रहा हूँ मैं। हाँ 14। This is question number 14 from your test. When the speed of flywheel is increased from 240 rpm to 360 rpm, so initial speed N1 was 240 rpm and N2 was 360 rpm. The energy spent, that is kinetic energy, is 484 joule. What is the moment of inertia of flywheel? So they are asking मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आई कितना होगा। अभी डेफिनेटली एनर्जी स्पेंड का मतलब क्या, दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल
minus kinetic energy initial. Kinetic energy final is half I omega 2 square minus half I omega 1 का square. Now you can take half I common. ओमेगा के जगह, अब ओमेगा 2 एंड ओमेगा 1 अपने को पता नहीं, बट वो कैलकुलेट कर लेते हैं हम. अंदर बचेगा ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर, एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के दैट इज नोन टू अस, दैट इज 484. अभी ओमेगा कैसे निकालोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल omega 1 is 2 pi n1 upon 60, so that will be 2 pi n1 is 240 upon 60. rpm में है ना, इसीलिए. तो 6 1 जा 6 4 जा 4 2 जा 8 pi जा, हो गया. ओमेगा 2 निकालते हैं. ओमेगा 2 is 2 pi n2 upon 60, so that will be n2 कितना है अपना, n2 डायरेक्ट पुट करते हैं 360. 6 1 जा 6 6 जा 6 2 जा 12 pi. दिस इज ओमेगा 2. ओके, तो अभी ओमेगा 1 मिला, ओमेगा 2 मिला, क्या करना है, दोनों को पुट करना है. सो 484 इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा 2 का स्क्वायर, दैट इज 12 पाई का स्क्वायर, विच इज 144 पाई स्क्वायर, 144 पाई स्क्वायर माइनस ये 864 पाई स्क्वायर. ओके, यू कैन टेक पाई स्क्वायर आउटसाइड, बट पाई स्क्वायर का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 होता है. तो आपको अंदर मिला 144 माइनस 64. लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट फर्दर. तो 484 इंटू 2 अपॉन 10, और ये कितना हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा. 144 माइनस 64 80. कितना आता है ये सॉल्व करने के बाद आंसर? मैच नहीं हो रहा है क्या? रुको 1 मिनट में करके देखते हैं. वन पॉइंट टू वन आता है. 1.21 1.21 आ रहा है, एंड 1.21 ऑप्शन में है नहीं. वही तो. व्हाट इफ वी पुट 9.8, बट फिर भी उससे कितना फर्क आएगा, 1.23 आएगा बस. कुछ रॉन्ग किया है क्या हम लोगों ने? नहीं. अच्छा, नहीं व्हाट सर. इफ वो वेट आई थिंक आई गॉट इट. एनर्जी स्पेंट, बट एनर्जी स्पेंट बोला है ना, द एनर्जी स्पेंट. अगर इन्होंने माइनस तो नहीं तो लिया, बट final माइनस answer लेके क्या क्या है? फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा. हाँ बोलो. फाइनल आंसर क्या है उसका? 1.21 होना चाहिए. 1.21 सर मुझे आया कैसे कैलकुलेशन करके. कैसे आया मेरे को बता ना. सर वो शायद बोले उसको 1.21 आया. हाँ हाँ, तो 2 1 जा 2 किया, नीचे 2 और 10 को पहले कैंसिलेशन किया, और फिर 484. एक मिनट से मैं वापस कर दे, लाइक आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, बट मुझे आया. 2 1 जा 2 किया, 2 5 जा 10, तो आया 484 अपॉन 5 इंटू 80. ओके, 5 इंटू 80, फिर 5 1 जा और 484 को डिवाइड किया, 5 और 484 को, फिर वो पॉइंट में आंसर आया. फिर वो 80 का जो 0 है उसको कैंसिल करके पॉइंट को निकाल दिया, एंड वापस कैलकुलेट किया तो आ गया. कितना आया तेरे को? वही तो 1.21 वही है ना. वही आया है. तो मैं तेरे को कैलकुलेशन नहीं पूछ रहा हूँ. तो मेरे को लगा तेरे को दूसरा आंसर आया कुछ. अच्छा ओके, सॉरी, मुझे लगा ये. नहीं, 1.21. गाइस, किसी को और अलग आया क्या आंसर? नहीं, तो ये क्वेश्चन का आंसर हाँ जो भी है, बट ये आंसर है ही नहीं ना ऑप्शन में, तो एलिमिनेट दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट बोलो. 41 भेजे हम ग्रुप पे. यस सर. द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन. इसका सॉल्यूशन मेरे पास है. मेरे को कल नित्या ने पूछा था. आई एम सेंडिंग इट टू यू. ग्रुप पे भेज रहा हूँ 41 का क्वेश्चन. सर देख ले. अंधेरी भी. अंधेरी पे भी चाहिए, भेज रहा हूँ. ये लो, भेज दिया. एक बार रेफर करो, नहीं समझा तो मुझे पूछो.
वो करेक्ट है वो क्वेश्चन। सर वो सेकंड लास्ट स्टेप में वो +1 क्यों किया है? कौन से स्टेप में +1 किया है? ऊपर सेकंड के लास्ट। ट्रांस नहीं नहीं नहीं, कट होगा। अरे सेकंड काइनेटिक लास्ट। एनर्जी ट्रांस अपॉन काइनेटिक एनर्जी ट्रांस क्या होगा? कट होगा ना वो। अरे नहीं, मैं सेकंड लास्ट में नीचे से बोल रही हूँ सर, +1 आपने किया है, फिर वो उधर गया है। इतनी महान लड़की, तो मैं उसके ऊपर वाला ही स्टेप बताऊंगा ना तुझे। सेकेंड लास्ट स्टेप के पहले थर्ड लास्ट स्टेप आएगा ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऊपर वाले स्टेप में तुझे के रोटेशन अपॉन के ट्रांसलेशन है, प्लस के ट्रांसलेशन अपॉन के ट्रांसलेशन है। तो के ट्रांस अपॉन के ट्रांस क्या होगा? 1 होगा। हाँ हाँ, समझे समझे। सर आपका आंसर है 2.7 क्या है? 2/5 आया ना आपको? हाँ तो सॉल्यूशन में 7/5। हाँ, तो वो करेक्ट कर दो ना, वो सी बोल दो। मेरे को सिर्फ नित्या ने पूछा, मैंने उसने बताया नहीं कि कौन था। नित्या कितना आंसर है? 2/5 ही है ना सॉल्यूशन में। प्रॉब्लम ये है कि 5/7। मैंने क्या किया था पता नहीं, मेरे को कुछ अलग ही आया था, तो मैंने इसलिए आपको पूछ लिया था। तेरा 2/5 ही आया था ना? नहीं, नहीं मुझे नहीं, ना, इसका बोल रहा हूँ। हाँ इसी का को मेरे को देखने दो। अरे इसका मतलब तुझे इसको पूछ रहा हूँ। अच्छा सॉरी। 7 क्या है आंसर? मेरे को भी ऐसा ही कुछ आया था, तो देखता हूँ। हाँ, मेरे को 2/5 आया। मुझे 2/7 आया था, पता नहीं कैसे आ गया था। अभी देखो मेरा करेक्ट है कि नहीं, कुछ रॉन्ग लगा तो बोल दो। सर रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन पूछे है ना? एक्सेलरेशन पूछे? हाँ, मैं कब से वही सोच रहा हूँ, आप ओह क्या माय निकाले? गॉड, तो मैंने क्वेश्चन ही रॉन्ग किया। एक मिनट, तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर वो भेजा मैंने शायद। नीते तूने 41 पूछा था मुझे क्वेश्चन। देखो मैंने आपको फोन से फोटो खींच के भेजा था, वो अ स्फीयर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा भी वही है। कुछ और आया, 2.5 नहीं आया मेरा भी। यही अरे है ना? एक मिनट ये में क्वेश्चन बोलती हूँ, आप हाँ देखो वो एक ही नहीं। अ स्फीयर ऑफ मोमेंट ऑन inertia I goes वही I goes down an inclined plane without slipping, यही वाला क्वेश्चन था। हाँ, बट ये आगे पढ़ आगे पढ़। the ratio of the rotational kinetic energy हाँ to मैं the सॉरी सॉरी गाइस, एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, नित्या ने गलत सॉरी अलग क्वेश्चन पूछा था। ये वाला सॉल्व करते हैं। द रेशियो ऑफ ऐसे क्वेश्चन सेम थे ना 2-3, इसलिए। हाँ मैं इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया, मैं स्फीयर में कंफ्यूज हो गया। ओके, द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन फॉर अ सॉलिड स्फीयर rolling down an incline without slipping and slipping down the incline without rolling। ओके ठीक है, तो अपने को क्या बोला है, अपने को एक स्लोप दिया है और यहाँ पे एक स्फीयर है। तो ये स्फीयर है ना, पहले रोल हो रहा है। ओके, और रोल जब होता है तो उसका एक्सेलरेशन आपको पता है, फॉर्मूला g sin थीटा अपॉन 1 + k² अपॉन r²। है मैं करेक्ट गाइस? हाँ यस सर। इन सेकेंड सिनारियो दे आर सेइंग कि सिलेंडर रोल ही नहीं हो रहा है, वो स्लिप हो रहा है। स्लिप मतलब स्लाइड हो रहा है इनडायरेक्टली। एंड जब स्लाइड होगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, वो कैसे निकालोगे? तो टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग जी लेट अस साइन थीटा बस। यस वेरी गुड। तो अभी समझो, इसका जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा ना, वो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी होता है। बट आप अगर देखोगे तो ग्रेविटी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक जो लेफ्टवर्ड है वो, और एक ये वाला हो जाएगा। अगर समझो हमने ये थीटा लिया तो ये वाला थीटा होगा, एंड दैट इज व्हाई दिस वन विल बी g cos थीटा एंड दिस वन इज g sin थीटा। तो अपना एक्सेलरेशन कितना है? g sin थीटा है सेकेंड केस में। तो ये a1 लेते हैं, ये a2 लेते हैं, a2 इज g sin थीटा। आपको क्या पूछा है, पहला कौन सा लेना है? रोलिंग डाउन वाला लेना है।
तो मतलब a1 by a2 पूछा है, तो दैट विल बी g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, हे भगवान, ओके, अपॉन g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, कैंसल, फिर ये उल्टा हो जाएगा ना, सो दैट विल बी 1 अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. Since it is a solid sphere, it will be 1 upon 1 plus k का वैल्यू 2 by 5, so that will be, हाँ ये r square cut, so that will be 1 plus 5 plus 1 7 by 5. Is it 5 by 7? Yes, sir. तो 5 by 7 is answer. सर हाँ, ऐसे सब क्वेश्चन में ना मेथड सेम रहता है, लेकिन कैलकुलेशन में पता नहीं क्या आंसर आ जाता है. मेरे हाँ कैलकुलेशन सर, तो वही इसमें मतलब वो आंसर सोल्यूशन मतलब 7/5 था, तो मेरे को 5/7 आया, तो वही इसे पूछा. करेक्ट कर दो ना फिर, मेरे को तो 5 by 7 आ रहा है. 5/7 नहीं, वो क्या बोल रहा है, 7 by 5 है सॉल्यूशन. नहीं 5/7. हो गया ये गाइस, समझा? चलो मेरे डाउट्स क्लियर हो गए मेरे टॉपिक के. लेट्स मूव ऑन विद द चैप्टर. चलो अभी मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने कैमरास ऑफ कर लिए होंगे, तो टर्न ऑन कर लो. ये नित्या तू मेरे को मैसेज कैसे सेंड कर पाई? मैंने सिक्योरिटी चेंज किया था ना मीटिंग का. मैंने कब आपको मैसेज किया? अच्छा वो पहले वाला मैसेज होगा फिर. सर साइंटिस्ट लोग ने प्रैक्टिकली देखा तो उसको देखा. नहीं, मैं होमवर्क में नोट्स लिखने के लिए क्यों दूंगा? नोट्स अभी लिख रहे हो ना? लास्ट टाइम आपने दिया था ना. नहीं वो क्वेश्चन तेरे स्पेसिफिक. इसका बंद है. नाश्ता करके कौन नाश्ता हमारे सामने नहीं कर सकते क्या? सुजल कैमरा, वर्षा कैमरा, शाहीन कैमरा, सेजल तोंडवलकर कैमरा. ईशा गौड़ हैज हेल्थ इश्यूज. वो मेरे बाकी लेक्चर में सब कैमरा ऑन करती है सर, मैंने परमिट है फॉर दिस मंथ. क्या मैं एवरीवन कैन सी योर मैसेज. बी केयरफुल ऑफ व्हाट यू से. हाँ हाँ तो कर ना तू, कैमरा ऐसे ऑन कर, क्रिएट बना. तो एक ब्रेकफास्ट करने के लिए तुम लोग कैमरा ऑफ करने की क्या जरूरत है? बाजू में करो ना, मैं नहीं देखूंगा. आई वोंट. मैं जस्ट देखूंगा कि तुम लोग देख रहे हो कि नहीं. देन आई वोंट अनलेस यू ईट, मतलब यू गाइस ईट सम डिफरेंट वे देन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, देन फिर बात अलग है. कैमरा ऑन रखना है. वही मम्मी ऑल्सो कांट लुक एट मी ईटिंग. अच्छा I'll give you 10 minutes after 10. I'll give you 10 minutes after 10. 10 मिनट के बाद 10 मिनट में कंप्लीट करके तुरंत खाना है. Okay, let's complete last topic from atoms, जो अपने नीट के लिए इम्पोर्टेंट है. ओके वैसे वाला मतलब नीट के लिए इम्पोर्टेंट, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए सारे कवर अप कर लिए मैंने. उसमें से लास्ट बचा है limitation of Bohr's experiment. Okay, so you can write this particular thing also along with me. By the time I explain it to you, आपका हो जाएगा. साइड बाय साइड लिख सकते हो अगर आप लिखना. तो ये पूरा स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं पूछता, नहीं लिखना है क्या?
नहीं, बहुत, हाँ बहुत बड़ा है। हाँ ठीक है, चलो मत लिखो, आपकी मर्जी। So let's try to understand limitation of Bohr's orbit, where Bohr actually went wrong. अगर बोर ने इतने लोगों को रॉन्ग बोला है ना नित्या, बोर ने इतने लोगों को रॉन्ग बोला, तो बाकी के केस में बोर को भी रॉन्ग बोल दिया कुछ लोगों ने, तो क्यों? लेट मी टेल यू द रीजन। फर्स्ट, बोर का एक्सपेरिमेंट कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन। ये प्रॉब्लम है। उसने हाइड्रोजन के लिए सब करेक्ट बताया, बट हाइड्रोजन छोड़ के जब हम लोग बाकी एटम्स में जाते हैं, दोज एटम्स व्हिच आर हेवी, दे डू नॉट ओबे द लाइन स्पेक्ट्रा एज वी सी इन हाइड्रोजन। तो जैसे हाइड्रोजन में हमें पैटर्न मिलता है, वैसे नहीं मिलता। इसमें नहीं मिलता, बाकी एटम्स में। So he was not able to explain that particular thing very correctly. Okay. Next, even for hydrogen, more accurate study of observed spectra showed multiple components in some lines which could not be explained on the basis of this model. अभी ये क्या मैं explain करता हूँ? आपको याद है हम लोगों ने पैटर्न स्टडी किया था हाइड्रोजन का? I'll try to show that particular thing for you. Wait a second. Maybe over here it was there. Yes, this pattern. So this was in general pattern. बाल्मर सीरीज है ये, क्योंकि आप देखो विजिबल लाइन से, तो ना हाइड्रोजन के पैटर्न में कुछ रैंडम लाइंस आ जाते इन बिटवीन। ओके, जैसे समझो फॉर एग्जांपल ये रेड लाइन है ना, तो उसके बाजू में ऐसा एक छोटा सा रेड लाइन बीच में आ जाएगा। ओके, और ये लाइन कहाँ से आया, ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ही हैड एक्सप्लेनेशन फॉर दीज लाइंस। कैसे सर? उसने किधर एक्सप्लेन किया? अरे भाई तूने अभी फॉर्मूला देखा ना, 1/λr 1/, वो किसने डिराइव किया था? वो बोर ने ही तो डिराइव किया था। सो बोर एक्चुअली प्रॉपरली एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर थिंग कि लाइंस कैसे आते हैं, बट उसका फॉर्मूला ये रैंडम कंपोनेंट के लिए अप्लाई ही नहीं हुआ। उसका रीजनिंग ही नहीं है कि ये लाइन कहाँ से आया। बीच में कहीं पे ऐसा बीच में लाइन आ जाता है, देखो ऐसे सडनली बीच में कोई और लाइन आ जाए, एंड ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस रैंडम प्रेजेंस ऑफ लाइन। ओके, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये बड़े बड़े जो लाइंस हमें दिखते हैं, मेजर लाइन, दैट वाज प्रॉपरली एक्सप्लेन, बट ये जो रैंडम कंपोनेंट हमें मिलते हैं, इट वाज नॉट एक्सप्लेन बाय हिज मॉडल। तो पहला प्रॉब्लम क्या है? हाइड्रोजन छोड़ के कोई भी एटम ले लो, उस पे ये वर्क नहीं कर रहा। एंड हाइड्रोजन के लिए भी there are some component, there are some random lines that are there, and he was not able to explain those random lines. Next, the intensities of the emission lines seem to differ from line to line, and Bohr's model had no explanation for it. Intensities मतलब कौन सा लाइन कितना ब्राइट है, कितना डल है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपने पैटर्न देखा था, उसमें ऐसा पॉसिबल है कि जो रेड लाइट था वो ज्यादा ब्राइट है, एंड जो ब्लू लाइट था या फिर पिंक लाइट था वो डल है। मतलब इंटेंसिटी समझते हो, ब्राइट डार्क, मोबाइल का ब्राइटनेस एडजस्ट करते हो, सेम थिंग। ओके, सो दैट इंटेंसिटी वाज नॉट एक्सप्लेन्ड अकॉर्डिंग टू बोर्स एक्सपेरिमेंट। ये ऐसा हुआ। ओके, नेक्स्ट, on theoretical side also, the model was not entirely satisfactory, as it arbitrarily assumed orbits following a particular condition to be stable. अभी ये कैसा है ना, पता मैं बता दूं आपको। I'll try to explain this particular thing to you. मैंने बोला था पता है, स्टेबल ऑर्बिट का कंडीशन है L equals to NH/2π। वो बता नहीं पाया कि वो आया कहाँ से, यही वो पॉइंट है। उन्होंने कैसे बोला है, ऑन थियोरेटिकल साइड आल्सो द मॉडल वाज नॉट एंटायरली सैटिस्फैक्टरी। मतलब थियरी के मदद पे भी वो सैटिस्फैक्टरी नहीं था। व्हाई? बिकॉज इट एज्यूम्ड दैट ये कंडीशन है L equals to NH/2π। प्रूव नहीं किया था ये L equals to NH/2π was not proven, and since it was not proven, the model was not satisfactory। जो भी उसने बताया ये वाला कहाँ से आया? अगर आप प्रूव नहीं कर सकते तो कैसे बोलोगे कि इट्स करेक्ट? आई होप इट्स ओके। समझ रहे हो? तीनों पॉइंट समझा, चारों पॉइंट समझा जो भी मैंने बताया। वो पहला क्या बताया, और हाइड्रोजन एटम को छोड़ के कोई और एटम है तो ये जो बोर के पोस्टुलेट्स है वो फेल हो जाते हैं। ओके, सेकेंड, फॉर हाइड्रोजन एटम ऑल्सो देयर कम्स रैंडम लाइंस, जिसका रीजनिंग वो नहीं कर पाया।
नेक्स्ट इंटेंसिटी, सो लेट मी हाईलाइट सम थिंग्स फॉर यू, सो आप जब बाद में पढ़ोगे उसको तो आपको बेटर पड़ेगा। ओके, अदर देन हाइड्रोजन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ओके, देन multiple components in some lines, or you could say random lines could not be explained. Okay, next intensities differ, वो भी explain नहीं कर पाया। next यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ ताकि आप समझो, reasoning behind L equals to NH upon 2 pi was not explained. Is it clear? समझा ये सब? Yeah. वेरी गुड। चलो अभी ये जो प्रॉब्लम्स थे वो प्रॉब्लम्स को डीब्रॉय ने करेक्ट किया। तो डीब्रॉय वाज लाइक कि आई विल करेक्ट यू, और डीब्रॉय पता है अपना साइंटिस्ट, एक मिनट, लेट मी आस्क दिस पर्टिकुलर थिंग टू समबडी। शीतल कैमरा, अच्छा है, ओके ओके नो प्रॉब्लम। वो मेरे को लगा वो फिल्टर लगाया तो ना कैमरा के ऊपर, आई वाज लाइक अच्छा टेल मी शीतल, और डीब्रॉय ने हमें क्या बताया था, मतलब लाइक डीब्रॉय का कुछ तो था ना अपने को ड्यूअल नेचर में, डू यू रिमेम्बर इट? डीब्रॉय का फॉर्मूला बोलेगी तो भी चलेगा मुझे, ड्यूअल नेचर के फॉर्मूला तो आपने इतने बार लिखे हैं। डीब्रॉय करके एक पर्सन था राइट, and he gave some theories etc etc. Who was this de Broglie? डी ब्रॉगली, हाँ आप अगर उसको डी ब्रॉगली बोलना चाहते हो तो डी ब्रॉगली। H nu is equals to h by lambda दिया। कौन सा यस दिशा पिंगले, डी ब्रॉय का फॉर्मूला बोल या फिर डी ब्रॉय का कंसेप्ट बता। आदित्य, डी ब्रॉय ने क्या बताया था? हाँ सर, डी ब्रॉय ने क्या बताया था? सर उसके 2-3 फॉर्मूले सर, एक वेलोसिटी वाले में सर ले लो रूट 1.2 to 0.4 अपॉन रूट वी, अरे रूट वी सर वेलोसिटी के लिए। वेलोसिटी के लिए नहीं बेटी, वो लैम्बडा का फॉर्मूला था, बराबर है तेरा सर फॉर्मूला। अरे वो हेलो रूट सर। जो है ना, रूट वी जो है ना वो वोल्टेज है। हाँ सर। हाँ तो तू लैम्बडा का फॉर्मूला है वो, बराबर है। चलो कुछ तो याद आ रहा है सर लिखाए थे आपने सर 3 टाइम, मेरे को याद है सर। सर मैं सर सब बता दूं? हाँ बता, कौन बताना चाहता है? सर कोई भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट रहेगा ना, उसके हाँ। पास भी मतलब वेवलेंथ रहेगा फोटोन की तरह। उसने इलेक्ट्रॉन का बताया था, जिसमें उसने 3-4 फॉर्मूला बताया था। एक तो फोटोन के लिए हो जाता है H/mc हो जाता है, बाकी ऑब्जेक्ट के लिए H/mv होता है। तो कहते लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, जिसका मास ज्यादा रहेगा उसका लैम्बडा मतलब वेवलेंथ कम रहेगा। तो इसलिए ह्यूमन का निकाला, तो ह्यूमन का लैम्बडा बहुत छोटा था, तो इसके वजह से मालूम नहीं पड़ता है। तो उसने इलेक्ट्रॉन पे वर्क किया, तो इलेक्ट्रॉन का इसको अच्छे से मिला, तो उसका जो उसने निकाला था 1.228 अपॉन रूट वी, जिसमें ये वोल्टेज था। और बाकी 2-3 और फॉर्मूले थे, जैसे h अपॉन रूट 2m/ke और रूट h अपॉन रूट 2m/qv, और यही था, बस इतना ही था। हाँ मतलब ये जो है ना ये परफेक्ट था। तो जो अपना साइंटिस्ट था, क्या नाम उसका, डी ब्रॉय, उसने एक वेव्स बताया हमें, मैटर वेव। तो इन शॉर्ट दिस मैटर वेव्स आर एक्चुअली, मतलब उसने क्या बोला, जो भी मैटर है मैटर, तो वो मैटर को भी वेव्स होते हैं। अगर आपको समझो किसी बॉडी का मास है तो वो मास भी वेव एमिट कर सकता है। दिस इज व्हाट ही सेड। ओके वैभवी, यू हैव टर्न्ड ऑफ द कैमरा विदाउट आस्किंग मी। मैंने तेरे को ऑफ करने के लिए नहीं बोला था। साहिल एंड दिशा को तो अलग। यस चलो अभी डी ब्रॉय का एक्सप्लेनेशन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बट
आई पर्सनली थिंक कि आपको ये वेव वाले चैप्टर का है तो याद नहीं आ रहा हो। मेरे को डाउट है कि वेव वाला चैप्टर जो था ना वो आपको भी याद नहीं आ रहा हो। तो आपको याद है वेव वाले चैप्टर में देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज सुपरपोजिशन ऑफ वेव। याद नहीं आ रहा। Yes, sir. ओके, अभी याद नहीं आ रहा है तो मतलब ये टॉपिक आपको अच्छे से नहीं समझेगा, और ये टॉपिक के लिए मैं आपको वेव्स फिर से नहीं पढ़ा सकता, उतना टाइम नहीं है अपने पास। सो व्हाट वी आर गोना डू, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ वेव वाला कंसेप्ट देखते हैं। फ्रॉम सुपरपोजिशन ऑफ वेव, सुपरपोजिशन क्या होता है पता है? जब दो वेव्स एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, समझो ये दो वेव्स एंड ये वेव जब एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं तो हमें कुछ ऐसे टाइप का वेव मिलता है, ऐसे वेव, है ना। तो ना अभी आप अगर नोटिस करोगे ना तो हम लोगों ने ना एक फॉर्मूला पढ़ा था वो वाले वेव में कि जो भी लेंथ होगा ना, लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा। रिपीट कर रहा हूँ, जो भी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगा, समझो अपने पास पहले ये पूरा ब्लू कलर का स्ट्रिंग था, गिटार का स्ट्रिंग पता है, गिटार का स्ट्रिंग था, आपने गिटार के स्ट्रिंग को प्लग किया, तो जैसे आप गिटार के स्ट्रिंग को प्लग करते हो यू गेट समथिंग लाइक दिस। ध्यान से सुनना, ये स्ट्रिंग है, आपने इसको प्लग किया तो गिटार का स्ट्रिंग है ना ऊपर चला जाता है, थोड़ा ऐसे ऊपर जाएगा ना, आपने ऐसा ऊपर प्लग किया तो देन आफ्टर दैट व्हाट इज गोना हैपन, वो फिर नीचे आएगा, ऐसे आएगा। एग्री करते हो कि नहीं? तो स्ट्रिंग ऐसे ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अगर आप बोल रहे हो सर मैं गरीब हूँ, मेरे को गिटार नहीं पता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसे कुछ बोलना है आपको, तो आप ये एक्सपेरिमेंट नॉर्मल रस्सी के साथ भी कर सकते हो। सो यू कुड टेक सुतली एंड वो सुतली को आप प्लग कर सकते हो टू गेट दिस पर्टिकुलर इफेक्ट। तो आप इसको ऐसा आपको मिल सकता है ये, सुपली है ना में थोड़ी प्रांजल? कैसे होगा? क्या सुपली में कैसे होगा? सुतली में होता है, सुतली को खींच के देख, ऐसे एकदम ऐसा टाइट पकड़ना है एंड देन ऐसे प्लग करना है। आपका कैमरा ऑफ है? हाँ कैमरा ऑफ, अरे कब हो गया? हाँ अब वापस बता। मैं बोल रहा था कि अभी समझो ये फॉर एग्जांपल सुतली है, ये सुतली है, ओके, और तूने क्या किया, इसको प्लग किया, मतलब बीच में ऐसा टाई करना और प्लग करना। कैसे यार, मेरे को कोई और एक और चाहिए था, मैंने टाई करना कोई, बट समझो आपने इसको ऐसा पकड़ा और सर वहाँ पे हाँ आजा। तो ये देखा कैसे वाइब्रेट हो रहा है, ये बोल रहा हूँ मैं, ऐसे जोर से करोगे तो आपको ऐसा इफेक्ट मिलेगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ, तो वो ऊपर नीचे जाता है रोप, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी वेव। अभी समझो आपने रोप को फिर से प्लग किया, मतलब इट इज ऑलरेडी इन वाइब्रेशन एंड आपने उसको फिर प्लग किया, तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा। दो लूप्स दिखे, ओके। अभी ध्यान से सुनना, एक और बार प्लग किया आपने, क्या किया, एक दो बार और प्लग किया, तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा। इज इट क्लियर? यस और नो? समझा क्या? Yes, sir. अभी सुनो सुनो सुनो, आप एक बात एग्री करते हो कि ये आपका रोप का लेंथ था, क्या बोलते हैं, एल था रोप, और आप ये भी एग्री करते हो कि ये हाफ वेवलेंथ है, क्योंकि पूरा वेव कैसे दिखता है, पूरा वेव ऐसे दिखता है ना, ये कंप्लीट वेव है, और ये वेव का हाफ पार्ट हुआ, यस और नो? जस्ट वेव फैला हुआ है, इसका फैला हुआ बिजनेस है, बट ये हाफ है, ओके, दिस इज हाफ ऑफ द वेव। तो डोंट यू एग्री विथ मी कि जो रोप का लेंथ है इट इज हाफ ऑफ द वेव, जो वेवलेंथ था उसका हाफ रोप का लेंथ है। इन सेकेंड केस ट्राई टू ऑब्जर्व दिस, आप ये आपका लेंथ है रोप का एंड यही आपका वेवलेंथ है, तो वोंट यू एग्री विथ मी कि लेंथ ऑफ द रोप इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू लैम्बडा, और यू कुड आल्सो राइट इट एज 1 लैम्बडा, 2 लैम्बडा ना, 1 रे, अरे माय डियर, ये सिर्फ क्रेस्ट हुआ। हाँ सर हाफ है, ट्रैप मिलता है तो वेव मिलता है। हाँ सर। व्हाट अबाउट दिस, इसके बारे में क्या कमेंट करोगे आप? 2 लैम्बडा, सेम ही है। 2 लैम्बडा ना,
हाँ क्योंकि ये सर। देखो ये एक लैम्बडा हुआ एंड ये एक दूसरा लैम्बडा हुआ क्रेस्ट एंड ट्रफ, तो दैट मीन्स 2 लैम्बडा हुआ। व्हाट माय पॉइंट इज, आपको एक जनरल फॉर्मूला मिलता है, देखो L is equals to n lambda, L is equals to n lambda इंटीग्रल मल्टीप्लाई, तो n मल्टीप्लाई हो जाता है वेवलेंथ के साथ। क्या यहाँ तक आप एग्री करते हो, समझ गया? ओके Yes. अभी सुनो आगे। डिब्रॉय ने क्या बोला, ध्यान से सुनो। डिब्रॉय ने ना जब इलेक्ट्रॉन को कंसिडर किया, ही रियलाइज ना कि इलेक्ट्रॉन ना एक्चुअल में, अगर आप इलेक्ट्रॉन के वेव्स देखोगे ना, इलेक्ट्रॉन जो वेव्स प्रोड्यूस करता है व्हाइल मूविंग, और उसको प्लॉट करोगे तो ऐसे कुछ स्टेशनरी वेव्स मिलते हैं। जैसे ये एक वेव हुआ और देन ये दूसरा वेव हुआ, ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन के फील्ड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसे वेव मिलते हैं। तो वो बंदे ने क्या किया पता है, कि जितने वेव्स मिलते हैं ना उसको प्लॉट करने, कैलकुलेट करने की कोशिश की। अभी यहाँ पे कितने वेव्स दिख रहे हैं आपको? मेरे ख्याल से 4 होंगे ना, देखो। Yeah. 1, this one is 2, this one is 3, this one is 4, है ना? एंड एंटायर सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? L 2 पाई 2 पाई r। व्हाट माय पॉइंट इज, ये जो रोप है ना, ये रोप जिसको हम लोग L इक्वल्स टू n लैम्बडा ले रहे थे, उसने उसको सर्कल में कन्वर्ट किया, बराबर अवनीश? उसने क्या किया, उसको सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। आपने उस लेंथ को किस में कन्वर्ट कर दिया? सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। बट माय पॉइंट इज, जो आपका फॉर्मूला पहले ऐसा था ना, L इक्वल्स टू n लैम्बडा, तो L के जगह आप क्या लिखोगे? लेंथ के जगह 2 पाई r। N is the number, no, the of wavelength, मतलब वो हाँ, half है, n 1 है। हाँ, n is number that multiplier 1 2 3 etc। क्या यहाँ तक समझा आपको गाइस? किसी को कुछ प्रॉब्लम है? 2 पाई r इक्वल्स मुझे नहीं समझा, नहीं समझा, no। सुन, ये रस्सी था, रस्सी का लेंथ L था, उसी रस्सी को तूने अगर सर्कल में कंसिडर किया तो लेंथ कितना हो जाता है रे? 2 पाई r सरकमफेरेंस, यस और नो? हाँ। अब तो मैंने L की जगह 2 पाई r लिखा, क्या प्रॉब्लम है बता? समझा मुझे। अभी समझा? हाँ। सूरज कैमरा, त्रिशा कैमरा, वैभवी कैमरा। मैं लास्ट 2 मिनट फॉर यू। अभी सुनो, एक इंटरेस्टिंग सी चीज मैं करने वाला हूँ, ओके? लेट्स बिगिन विद दैट पर्टिकुलर थिंग, दिस इज वेरी फन फॉर यू, मजा आएगा इसमें। सुनो, आपने ये चीज से एग्री किया कि 2 पाई r n लैम्बडा होता है, तो आप ये भी एग्री करोगे कि लैम्बडा इक्वल्स टू 2 पाई r बाय n। एग्री किया? क्या किया रे मैंने? n को वो साइड भेजा ना सिर्फ। ओके अभी बिगिन करते हैं डेरिवेशन। क्या करना है देखो, ध्यान से सुनो। आपको पता है डी ब्रॉय का अभी फॉर्मूला बोला था, अली ने कुछ ऐसा बोला था ना, H/mv, H/p, H/mv। अभी लैम्बडा की जगह आपको 2 पाई r बाय n डालना है, तो ये हो जाएगा 2 पाई r बाय n इक्वल्स टू H/mv। हाँ अभी देखो एडजस्ट क्या करना है, ये जो यहाँ से n और 2 पाई है ना, उसको वो साइड लेके जाओ, तो आपको मिला r इक्वल्स टू NH 2 पाई mv, और इधर का mv जो है ना वो ये साइड लेके आओ, आपको मिला mvr इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। व्हाट इज mvr? Isn't it Angular momentum. L equals to NH upon 2 pi। प्रूव, यही प्रूव करना था ना, यही पता नहीं था कि कैसे आया, ऐसे आया, L equals to NH upon 2 pi। That's why this topic is so interesting for me, because like आपको एक साइंटिस्ट मिस्ट्री देता है, दूसरा साइंटिस्ट उसको रिजॉल्व कर देता है, ऐसा। किसी को डाउट है इसको टॉपिक में? The only problem you might had was the wave का concept, क्योंकि आपको wave अभी याद नहीं आ रहा हो, बहुत टाइम हुआ उसको इसके लिए। ठीक है, चलो ये लिखने की जरूरत एक्चुअली मतलब ऐसा इम्पोर्टेंट तो है ये, बट वो मतलब फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है अपने लिए। चलो let's now talk about relation between radius of nuclei
एंड मास नंबर। दिस पर्टिकुलर रिलेशन के ऊपर अपने को नहीं, न्यूक्लियाई में आएगा ये टॉपिक, अभी नहीं आएगा। ओके, सो लेट मी चेक। आई थिंक टॉपिक ऑलमोस्ट ओवर हो गया है, बट फिर भी मैं एक बार एनसीईआरटी से गो थ्रू कर रहा हूँ ताकि कोई भी टॉपिक मिस आउट ना हो। ओके, सो गिव मी अ सेकंड, डोंट गो एनीवेयर। सर वो स्लाइड एक बार दिखाइए ना सर, डेरिवेशन वाली। हाँ हाँ, लिखो लिखो, जिसको लिखना है वो लिखो, अच्छी बात है, लिखना चाहिए। क्लास 11 नहीं, क्लास 12 का टॉपिक है। Okay, so let's see. Introduction, plum pudding model, that was over. Rutherford का theory was over. Experiment was over. फिर उसके बाद scattering angle. Okay, this particular topic is there. Graph है, बाकी कुछ नहीं. फिर उसके बाद distance of closest approach, that concept is also over. फिर electron orbits, energies, that is over. Atomic spectra is over. Okay. गाइज मैं ना आपको हाइड्रोजन का जब डायग्राम बनाया तो वहां पे H अल्फा, H बीटा, H गामा मेंशन नहीं किया है। H अल्फा, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रहा है? Yes. तो यहाँ पे ना ये जो सीरीज है ना, देखो ये सीरीज की बात कर रहा हूँ मैं, किधर गया? हाँ, ये सीरीज, इनका ना H अल्फा, H बीटा, H गामा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो 434 वाला है ना, इसको हम लोग H गामा बोलते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक रेज होते हैं। और ये 656 है, इसको H अल्फा बोलते हैं। 486 है, इसको H बीटा बोलते हैं। तो ये मतलब एनसीईआरटी में इसका एक डायग्राम दिया है, मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर रहा हूँ, या फिर आपके पास अगर एनसीईआरटी है तो प्लीज 421 पेज पे आ जाओ। 421 पेज नंबर आने के बाद मुझे बोलना। एक मिनट रुकना। हाँ, अरे हो गया, 1 मिनट, हो गया। सर बुक लाना पड़ेगा। हाँ लेके आओ ना, कैमरा ऑफ करके जाओ, कोई बात नहीं। तो फोटो भेज दो ना। फोटो ठीक है, फोटो भेज देते हैं। मैं आपको लाइक 2 फोटो भेज रहा हूँ। अभी इसमें देखो, आप नोटिस करोगे कि जो पहला वाला है ना, फिगर 12.5, उसमें देखो उन्होंने लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाशियन सीरीज एक ही स्क्रीन के ऊपर प्लॉट किए। तो उसमें कुछ सिग्निफिकेंट या इम्पोर्टेंट ऐसी कौन चीज सा है? पेज नंबर बोला था आपने? 421। हाँ खोला। हाँ, तो 421 पे आप फिगर 12.5 देखो, दिखा आपको? तो लाइमन, बाल्मर, पाशियन, एवरीथिंग इज प्लॉटेड ऑन द सेम स्क्रीन। मतलब जो हम लोगों ने ये डिफरेंट डायग्राम पढ़े ना, जैसे कि ये है, सॉरी, जैसे कि ये है, इन सबको उन्होंने एक ही डायग्राम में मर्ज किया है। इज इट क्लियर? दैट डायग्राम समझा आपको? या कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट प्लग किया है, कुछ इंटरेस्टिंग जो मिस आउट वैसा हमने किया, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। देन फिगर 12.6 देखो, उसमें आप देखा H अल्फा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा है, वो भी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये अपने टेक्स्ट बुक वाले डायग्राम में भी सेम है, जस्ट उन्होंने नाम नहीं दिया है। देखो जैसे 656 नैनोमीटर वाला उन्होंने 656.3 बोला है, ये H अल्फा होता है। फिर उसके बाद 486 वाला ये आपका H बीटा होता है। फिर उसके बाद 434 वाला ये H गामा होगा। एंड H डेल्टा जो है ना, वो इसके पीछे आता है, 410 के पीछे थोड़ा सा।
क्या ये क्लियर हुआ मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। तो ये उन्होंने मल्टीपल वेव्स मतलब लाइक स्पेसिफिक नाम दिए उन्होंने उन रेंज को, एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा एक्सेट्रा। तो ये था एक एक्स्ट्रा पार्ट, जो मतलब एक्स्ट्रा पार्ट कुछ था ही नहीं, सेम चीज थी। उसके बाद बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाँ वो तो वो भी हम लोगों ने देखा। फिर L इक्वल्स टू NH/2 पाई, फिर एनर्जी के इक्वेशन देखे। फिर ये वाला गाइज आप पढ़ लोगे क्या, केमिस्ट्री का टॉपिक है, देखो ऑर्बिट वर्सेस स्टेट, ऑर्बिटल पिक्चर जो है ना, ये पेज नंबर 4, मैं SS भेज रहा हूँ आपको। पेज नंबर कौन से पे, 426 पे देखो, एक्स्ट्रा नॉलेज सर है जस्ट। एसएस हाँ भेज रहा हूँ, ये वो देखो ब्लू ये बॉक्स। ब्लू बॉक्स। हाँ तो उसमें मतलब मैंने सिखाते सिखाते वो चीजें बोली है, बट ऐसे वर्ड टू वर्ड नहीं गया, तो वो पढ़ लो। एंड अगर आपको समझ रहा है तो ले लो, नहीं तो इग्नोर भी कर सकते हो। ज्यादा कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर समझा तो और अच्छा है। वो ब्लू बॉक्स है ना वो, मेरे को लग रहा है टफ जाएगा ये, अंडरस्टैंडिंग है ना वो जो टॉपिक है, क्योंकि वो उन्होंने भी देखो ब्लू बॉक्स में डाला है, उसके पीछे रीजन है, तो दैट इज एक्चुअली थोड़ा बाहर का नॉलेज है उसमें एडिशनल, दैट इज वाई। ओके, फिर एनर्जी लेवल तो एक्सप्लेन कर दिया मैंने, एनर्जी एमिट होता है कैसे वो भी एक्सप्लेन कर दिया। फिर 429 पे देख ग्राफ, देखो ये वाला भी मैंने एक्सप्लेन किया है, जो बाल्मर सीरीज लाइमन सीरीज को हमने प्लॉट किया था ना वो, तो इन्होंने इसको थोड़ा अलग प्लॉट किया है, देखो मैं बताता हूँ आपको, ग्रुप पे सेंड किया, देखो फोटो रिसेंट वाला, उसमें देखो, तो यू वुड सी दैट जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया था वो कुछ अलग है, देखो मतलब दिखने में सिर्फ अलग है, बाकी कुछ नहीं। किधर गया वो, दिस वन गाइस, दिस इज द वन आई एम टॉकिंग अबाउट, ये हमने स्टडी किया, और उनका डायग्राम कुछ इस तरह से दिख रहा है, बस वही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं, कंसेप्ट सारे के सारे सेम है। फिर वहां पे नीचे देखो डी ब्रॉय का एक्सप्लेनेशन है 431 पे, जो अभी मैंने बताया ना वो वाला। एंड नीचे उन्होंने एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट दिया है जिसको उन्होंने बोला है लेजर लाइट। ओके, अभी आई कैन एक्चुअली गिव यू द आइडिया ऑफ लेजर लाइट, बट उन्होंने लेजर लाइट के एकदम प्रॉपर ऐसे ये नहीं बोला है कि कैसे होता है लेजर लाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट आई विल गिव यू द आइडिया अबाउट लेजर लाइट, सो दिस विल बी आल्सो क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा टॉपिक फॉर यू। कौन सा लाइट, लेजर लाइट। अभी आई ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली लेजर इज। लाइट एम्प्लीफिकेशन, मेरे को एग्जैक्टली याद आ रहा है क्या, देखते हैं अभी, बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन light amplification and stimulated emission and radiation, emission and radiation. Okay, this is laser. ये थोड़ा सा हायर लेवल का टॉपिक है, आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में भी देखो उन्होंने जस्ट टच किया है, आपको लेजर क्या है वो बताया। मैं वही चीज यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई वांट यू टू पे क्लोज अटेंशन टू व्हाट एग्जैक्टली लेजर इज। एज द नेम सजेस्ट, इट इज लाइट एम्प्लीफिकेशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन मतलब लाइट को हम लोग एनहांस करते हैं। आपको पता है कि पहले एक ऐसा लाइक सेल के टाइप में ऐसा एक शेप में कुछ आता था जिससे ना लेजर बाहर निकलते थे ऐसे रेड कलर की, एंड आप उसके साथ खेलते थे, किचन भी हुआ हाँ सर, 20 रुपए का आता था। हाँ देखा है कि इसने देखा, आदित्य ने देखा, आपने देखा कि नहीं? आता है सर अभी भी। हाँ सर, बिल्डिंग में मारते थे सर। हाँ हाँ, तो उसमें ना ये जो लेजर निकलता है ना, वो लेजर एक्चुअली जनरेट कैसे होता है? क्या बोल रहे हैं? इन्फिनिटी है ना? फिर से बोल, आई एम सॉरी, आई एम नॉट। ये जो डिस्टेंस है आप लेजर की बता रहे हैं तो उसकी इन्फिनिटी है ना, कि इसके भी है कोई वैसे पॉइंट? नहीं नहीं नहीं,
लेजर का रेंज जो बोल रहा है ना, तो कि लेजर कितना दूर जा सकता है, तो इन्फिनिटी डेफिनेटली नहीं, उसका भी लिमिट होगा ना, बिकॉज लेजर एट द एंड एनर्जी है, तो एनर्जी कभी ना कभी क्या बोलते हैं लूज होने ही वाली है, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होने ही वाली है। तो तू एक जगह से मारेगा और इनफाइनाइट चला गया तो कितना अच्छा होता, बट इट्स नॉट गोना हैपन एनीवे। ओके, और उसके लिए तो लेजर का स्ट्रेंथ भी डिपेंड है कि कितना स्ट्रेंथ होगा। अभी आगे सुनो, लेजर का पर्पस सिर्फ यही नहीं है। ओके, आई एम गोना कम बैक टू द जूम नाउ, और आई नीड टू सी एवरीवन का वीडियो, सबका वीडियो ऑन दिखना चाहिए। अभी सुनो, तो व्हाट माय पॉइंट इज कि जो लेजर होता है ना, वो सिर्फ लाइक बिल्लियों के साथ खेलने के लिए नहीं बना है, कि देयर आर एक्चुअली मेडिकल पर्पसेस फॉर इट आल्सो। जैसे कैंसर में ट्यूमर रिमूव करने के लिए लेजर सर्जरी करते हैं। आईज में आपको पता है आईज को ये करने के लिए, श्रेया आर यू देयर, बैठ के लेक्चर अटेंड कर रही है ना? यस सर। रेटिना साफ करते हैं। हाँ, रेटिना क्लीन करने के लिए लेजर सर्जरी होता है। फिर जैसे कैटरेक्ट के चश्मा लिए। निकल जाता है ना, पता है चश्मा निकालने का सर्जरी, या वो वाला। यस सर। then there is बड़ी something हार्ड what we निकालने के call लिए। मेटल कटिंग। मेटल कटिंग पता है आपको, मेटल कट होता है लेजर से, हाँ लिटरली। हाँ सर। तो दीज आर मल्टीपल एप्लीकेशंस ऑफ लेजर। और पता है लेजर एक्चुअली क्या है? लेजर इज लाइट एम्पलीफिकेशन। तो जो भी आप फोटोन जनरेट करते हो ना, उनको उनके पास इतना एनर्जी देते हो कि वो हाई एनर्जाइज फोटोन हो जाते हैं, एंड वो फोटोन के पास इतना ताकत होता है कि वो मेटल को भी काट दे। और अगर समझो मेटल को काटने वाले लेजर अगर आईज में यूज करेंगे तो क्या होगा? सो दैट मीन्स यू अंडरस्टूड द आइडिया कि मल्टीपल लेजर्स होते हैं जिनका अलग अलग एनर्जी है, इंटेंसिटी है, एंड उनको जनरेट करने के लिए मल्टीपल मेथड्स है। देयर इज वन वेरी फेमस लेजर दैट वी यूज फॉर मेडिकल पर्पस, NDYAG लेजर। अभी ये एनसीईआरटी में भी नहीं दिया होगा, ओके, बट तो हम लोग इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसे मल्टीपल लेजर्स है, NDYAG हुआ, फिर उसके बाद तो याद नहीं आ रहा अभी एग्जैक्टली, बट है ऐसे मल्टीपल लेजर। और ये लाइट एम्पलीफाई करने के लिए हम लोग स्टिम्युलेट करते हैं। स्टिम्युलेट करना मतलब, बायोलॉजी स्टूडेंट हो आप जानते हो, किसी चीज को स्टिम्युलेट करना मतलब उसको उकसाना बेसिकली, एंड उसके वजह से जो एमिशन एंड रेडिएशन होता है वो लेजर। तो क्या करते हैं, आई ट्राई टू गिव यू लिटिल बिट आइडिया, थोड़ा सा आइडिया में देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपको देखो समझता है तो लो, नहीं तो जाने दो। क्या करते हैं कि हम जब एक्साइट करते हैं ना इसको, तो एक ऐसे वे में एक्साइट करते हैं, समझो कोई एटम इलेक्ट्रॉन है, वो ग्राउंड स्टेट में एकदम लाइक जीरो ऑर्बिट जो होता है ना अपना, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हम लोग इसको ना हाई लेवल तक लेके जाते हैं, आयोनाइज करते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं, एक्साइट करते हैं, सॉरी एनर्जी एक्साइट करते हैं। तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं वो बहुत ऊपर जाता है, हाई लेवल पे जाता है। अभी आपको पता है जो ऊपर गया है उसको नीचे आना ही पड़ेगा, बट वो डायरेक्ट नीचे नहीं आता, वो सेट वे में नीचे आता। इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट तुरंत नीचे नहीं आता, वो सेट वे में नीचे आता है। तो रादर देन कमिंग डाउन, वो मे बी थर्ड ऑर्बिट में थोड़ा रेस्ट करेगा। वो क्या करता है, थर्ड ऑर्बिट में थोड़ा रेस्ट करता है, एंड आफ्टर दैट इट कम्स डाउन like this, and now when it comes down it will emit radiation h nu। तो हम क्या करते हैं, हम ना जब ये इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनो, आप, मुझे पता है कि आपके नॉलेज से बाहर का टॉपिक में बता रहा हूँ, जस्ट एज अ नॉलेज ले लो। तो जब हम लोग इसको थर्ड ऑर्बिट में इसको रेस्ट करने देते हैं ना, तो उस टाइम पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी वहां पर रेस्ट कर रहे हैं। समझने की कोशिश करो, जैसे कि एक एग्जांपल ले लो कि आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे हो, एंड देयर इज समथिंग व्हाट वी कॉल एज रेस्ट रूम। रेस्ट रूम मतलब रेस्टिंग रूम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वॉशरूम, नहीं तो वॉशरूम सोचना चालू कर दो। आई एम टॉकिंग अबाउट रेस्टिंग रूम, जहाँ पे लोग लिटरली बैठते हैं, गेस्ट रूम बोलते हैं ना वहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे लोग उधर पे बैठ रहे हैं। अभी जैसे ही ट्रेन आई तो क्या हो गया, सारे के सारे लोग फटाफट फटाफट बाहर आएंगे। तो वैसे ही एक एक करके इस थर्ड ऑर्बिट में हमने इलेक्ट्रॉन बिठा दी, वो बैठ जाते हैं, एंड एट अ सर्टेन इंस्टेंट जब कोई ट्रिगर करता है इसको, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ नीचे जाएंगे। अभी आप इमेजिन करो, एक इलेक्ट्रॉन h न्यू जितना एनर्जी जनरेट कर रहा है, अगर आपने मल्टीपल इलेक्ट्रॉन कंसिडर किए
तो डोंट यू एग्री वो ज्यादा एनर्जी एमिट करेगा? यस और नो? यस सर। हाँ, एंड जब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा तो उसी को लेजर बोलते हैं हम लोग। लाइट एम्पलीफाई किया ना आपने, अगर एक फोटोन करता तो थोड़ी ना उसमें मजा आता। आपने क्या किया, आपने मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह पे बिठाया और उनके पास क्या था, हाई एनर्जी था। तो जब वो नीचे आते हैं दे मस्ट लूज द एनर्जी। याद है मैंने आपको क्या सिखाया था, ग्राउंड स्टेट में रिटर्न आने के लिए ग्राउंड स्टेट उनको लेगा ही नहीं, ग्राउंड स्टेट बोलेगा चल भाग इधर से, आई वोंट एक्सेप्ट यू। तो इसीलिए उनको एनर्जी लूज करना है। तो मैंने क्या किया, या फिर लेजर में क्या करते हैं, आप एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए नहीं देते, आप इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं बाबा तो रुक जा थोड़ी टाइम के लिए, और लोगों को बिठाते हैं और एक साथ लूज करो एनर्जी। गेटिंग इट? आप गेस्ट रूम में उनको बिठाते हो, सिमिलरली यहाँ पे मैंने थर्ड ऑर्बिट में उनको बिठाया एंड देन बोला अभी एनर्जी लूज करो, ट्रिगर दिया कोई। तो जैसे आप ट्रिगर देते हो तो सारे के सारे एक साथ एनर्जी रिलीज करते हैं एंड दिस कॉजेस लेजर। कंसेप्ट समझा? या नाउ दैट, हाँ बोल। सर बोलो। सर मतलब जो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं उसी को लेजर बोलते हैं सर, जैसे हम ना, लोग लेजर लाइट इलेक्ट्रॉन लेते हैं। एमिट नहीं हो रहा है डियर, इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहा है। मतलब सर वो मल्टीपल ग्राउंड स्टेट में आता है। हाँ, तब वो एनर्जी एमिट कर रहा है। हाँ तो उसको इलेक्ट्रॉन लेजर उधर ही बोलते है, हैं। हाँ उसी को लेजर बोलते हैं। और सर बट वो लेजर लाइट मारो तो सर दिख भी जाता है सर, मतलब पूरा यहाँ से मारो सामने वाला पहचान लेता है कहाँ से। नॉट नेसेसरी। दिखता क्यों है, क्योंकि तू विजिबल एमिशन दे रहा है। तो ये जो तूने लेजर मारा उसका फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ रेड लाइट का था, इसीलिए तुझे हाँ रेड सर। लेजर मिला। अगर ग्रीन लाइट वाला फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा तो तुझे ग्रीन मिलेगा। इनफैक्ट तुझे पता है इंफ्रारेड लेजर्स भी होते हैं। नो सर, यही 2 तक सीमित हूँ सर। हाँ। सर उसका मतलब रेंज भी लंबा होगा ना? उसका क्या लंबा होगा? रेंज। हाँ हाँ, इंफ्रारेड का रेंज लंबा होता है। यस यस। हाँ लो रेड सर इसलिए ग्रीन बोलते हैं क्योंकि उसका वेवलेंथ लंबा है और इसको दूर तक जाएगा। यस करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। बट क्या आपको लेजर इंटरेस्टिंग लगा थोड़ा बहुत? वैसे आपको पढ़ना हाँ नहीं है सर। इसके लिए, बट जस्ट बता के रखा। ओके, वेरी गुड। तो मैंने सारे टॉपिक कवर किए, एक लास्ट चीज बची है गाइस, एक ग्राफ है बस। बाकी मैंने पूरा वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी टू गया हूँ। आप चाहे तो बाद में रीड करना है एनसीईआरटी, तो आपको और अच्छे से समझेगा। द ग्राफ दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज दिस वन, और ये भी समझ जाएगा उसमें क्या टफ है, 2 मिनट में समझा दूंगा। इधर गया ये वाला, आई एम सेंडिंग इट इन द ग्रुप। एंड ना इनफैक्ट आई एम गोना गिव अपॉर्चुनिटी टू यू गाइज ओनली। आप मुझे बताओ कि मैं क्या, मतलब ये ग्राफ क्या बोल रहा है। ओके, कैन रेज योर हैंड आल्सो। पहले पढ़ो इसको ग्राफ को एंड देन ट्राई टू एक्सप्लेन दिस टू यू। सर कहाँ पर है सर? भेजा ना ग्रुप में। देखो मैंने ग्रुप में भेजा, पेज नंबर 417 पे। सर उसमें पढ़े कहाँ पे सर? अरे वो पढ़ना नहीं है, जस्ट ग्राफ देख के क्या लगता है वो मत बता। अच्छा सर याद ठीक आ है रहा है सर। क्या कुछ ऐसे? क्योंकि मैंने उसका थियरी और लॉजिक ऑलरेडी बताया है, बट वो कैसे। और ये ग्राफ जो है ना वो कौन से एक्सपेरिमेंट का है पता है? जो हम लोगों का गीजर मार्सडेन का एक्सपेरिमेंट याद है, गोल्ड फॉइल का। सो द ग्राफ इज फॉर दैट एक्सपेरिमेंट। या किसी को बताना है? नेहा, डू यू वांट टू से समथिंग अबाउट दिस ग्राफ? सर मैं बोलूँ थोड़ा? नो सर। हाँ बोल बोल। सर इसमें ऐसा है कि एंगल जितना मतलब वेरी करेगा, जैसे
सीधा वन डायरेक्ट 180 की तरफ आने वाला, तो बहुत कम मिलेंगे अपने को नंबर ऑफ उसके पार्टिकल्स। और यस ज्यादा डिविएट होने वाले ज्यादा मिलेंगे, जितना ज्यादा डिविएट होता रहेगा तो उतना हाँ ज्यादा निकालते हैं वो रहेगा पार्टिकल। और जो सबसे ज्यादा डिविएट मतलब जो डायरेक्ट आ जा रहा है, हाँ मतलब आने की वापस पॉसिबिलिटी कम है, मतलब 180 डिग्री की, तो उसमें बहुत कम हाँ पार्टिकल ऐसा करेंगे। बाकी मोस्ट ऑफ द पार्टिकल इधर उधर डिविएट हो जाएंगे थोड़े थोड़े। यस। तो द ग्राफ दैट दे हैव गिवन इज लाइक दिस। देखो मैं ना आपको ना एक्सपेरिमेंट के बाजू में अपने ग्राफ बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ये आपको याद है मैं हम लोगों ने गीजर मास्गन एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। तो हाँ गीजर सर। मास्गन कहाँ पे गया था यार, वो गोल्ड फॉइल का यार, हाँ ये वाला। तो इसमें आपने देखा था कि एंगल है ना, एंगल वो मल्टीपल एंगल के लिए आपके पास मल्टीपल पार्टिकल है। तो जितना एंगल, अभी देखो आप ना मैं एक ग्राफ किधर बनाऊं यार, ठीक है चलो इसको ही ले लेते हैं, इसको उठा देते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे लेते हैं। सर समझा ग्राफ सर। समझा ना, बट कुछ लोगों को नहीं समझा इसके लिए। तो आपको याद है मैंने क्या बोला था कि बहुत सारे पार्टिकल अनडिविएटेड जाते हैं। अनडिविएटेड मतलब 0 डिग्री पे डिफ्लेक्ट करते हैं। ऐसे कितने होते हैं? बहुत सारे। तो अगर समझो आप, इफ यू क्रिएट अ ग्राफ बिटवीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल, और स्कैटर्ड बोलते हैं इसको, सो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल, एंड अगर आप यहाँ पे एंगल लोगे तो आपने क्या नोटिस किया कि जब एंगल 0 डिग्री होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? बहुत सारे। बट जैसे जैसे आप एंगल को इंक्रीज करते जाओगे तो आप नोटिस करोगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल कम 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 होते जाएंगे। तो समझो आपने 0 डिग्री से 20 किया एंगल, यू रियलाइज कि डिफ्लेक्टेड पार्टिकल कम हो रहा है। 60 किया, कम हो रहा है, और किया कम हो रहा है, और किया कम हो रहा है, कम हो रहे कम हो रहे कम हो रहे। और जब तक आप लाइक 180 वगैरह के आसपास 180 जाते तक हो कर ना, दिए तो हाँ सर हाँ, तो आपका स्ट्रेट आपको हो देखो जाएगा। कितना हो रहा है, ऑलमोस्ट 10 या फिर उससे भी कम हो रहे हैं पार्टिकल। समझ रहे हो? तो स्कैटर्ड पार्टिकल कम हो रहा हाँ है। सर समझा। हाँ तो मैंने सिखाया था ना ऑलरेडी हाँ कि सर आपने बताए यस। थे। ग्रेटर एंगल पे पार्टिकल्स कम स्कैटर्ड होते हैं, वही सेम चीज, बट उन्होंने ग्राफ में मेंशन किया उसको बस, और वर्डिंग्स में हाँ भी दिया है बट ग्राफ एक्स्ट्रा है। इज इट क्लियर? पूरा का पूरा यस सर। एनसीईआरटी एकदम प्रॉपरली कंप्लीटेड। ओके हाँ सर। हाँ, अभी क्या करना है कि आई वांट टू गिव यू वन टास्क। तो मेरे मेरे जितने भी टॉपिक हुए आप पहले वाले, उसमें से आपको ये फाइंड आउट करना है कि क्या सारी चीजें मैंने सिखाई है या नहीं। ओके और अगर कोई एनसीईआरटी का पार्ट रिमेनिंग है तो आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर बताओगे वो, तो आई विल ट्राई टू कवर ओके सर। दैट पर्टिकुलर पार्ट। तो मेरे तरफ से एनसीईआरटी आपका पूरा हो जाएगा, बिकॉज आई गेस दिस इज माय यू कुड से सेकंड लास्ट चैप्टर। After that, I will teach only one chapter nuclei, and then my portion for you will be over. So मेरे लेक्चर नहीं लगेंगे आप। सर सर हाँ रिवीजन लेक्चर, सॉल्विंग लेक्चर। सर क्या बोल रहे? 11th के रिवीजन लेक्चर 11th के रिवीजन वो सर से बात करनी पड़ेगी आपको। तो मैंने सर को बोला, सर बोले ठीक है रखूंगा, लेकिन 3 हफ्ते हो गए तो कुछ मोस्टली वो ऑफलाइन ही रखोगे तो बेटर पड़ेगा। हाँ सर ऑफलाइन हाँ सर। ऑफलाइन के लिए ही बोला था मैं। सर हाँ बोले रखूंगा पर अभी तक रखे नहीं, 3 हफ्ते हो हाँ गए। हाँ हाँ, फिर से बात करो तो अभी आप। अंधेरी में ही चल रहा है ऑफलाइन। हाँ ये मैनेजमेंट से ही बात करोगे तो वो बेटर रहेगा, वो आपके लिए कुछ करेगा। ओके अभी धीरे धीरे क्लास ऑफलाइन चालू करने की कगार पे है, तो मोस्टली तो यही चल रहा है। अभी देखो एक्सपेरिमेंट वगैरह भी क्लासेस में अगर आप जाते हो तो देखोगे कि बहुत सारे बैचेस ऑफलाइन भी हो रहे हैं धीरे धीरे। तो हो जाएगा ऑलमोस्ट। अभी ये अगर समझो कोई और एक वेरिएंट नहीं आया और स्क्रू अप नहीं किया तो डेफिनेटली 1-1.5 महीने में आई एम सेइंग कि पोटेंशियली ऑफलाइन ही चालू करने की कोशिश रहेगी। बट वो कैसा है कि वो वायरस स्क्रू अप नहीं होना चाहिए, फिर नहीं तो फिर नया कोई वेरिएंट आया तो गवर्नमेंट ही लॉकडाउन लगा देगी। फिर उसको रिलीज करने तक 2-3 महीना चला जाएगा, फिर उसके बाद फिर तुरंत अलाउ नहीं करेंगे, फिर यार फालतूगिरी चलता रहेगा। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। तो अभी पता है रिसेंटली एक लॉकडाउन हुआ था, वो वर्स्ट था। हाँ अभी एकदम रिसेंट वाला, तो उसके पहले ही चालू करने वाले थे धीरे धीरे, बट उसके बीच में ये हो गया चालू, फिर वो गैप पे गिर गया, फिर अलाउ नहीं कर रही थी गवर्नमेंट, या फिर मतलब स्टेट ऐसा। सर
तो मुझे कुछ पूछना था सर, वो LH वाला सर, वो फॉर्मूला जो आपने डिराइव किया था सर, एक मिनट वो खोलो ना। LH L equals to अरे सर वो जो डेरिवेशन किए थे 2H अपॉन सर क्या था यार NH upon 2 pi. एंगुलर मोमेंटम। NH upon 2 pi ना, हाँ सर। सर उसमें जो n था सर क्या था सर, नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑर्बिट नंबर, सर फर्स्ट ऑर्बिट ऑर्बिट नंबर था। और सर जो हाँ ऊपर साइड हम लोग ने बताए थे सर, उसमें तो हम लोग नंबर ऑफ सर ये बोले थे ना, हाँ कितना नंबर से लैम्बडा मल्टीप्लाई कर हाँ रहे थे। सर हाँ इसमें ऑर्बिट बराबर, कैसे लिए, मतलब हाँ I agree, n is just a number over here, okay, integral multiplier. बट हमने जब ये n कंसिडर किया था, ये जो लॉजिक हमने देखा था, तो लॉजिक भी तो हम लोग वेव के लिए ले रहे थे ना, दैट तो हाँ हम सर। लोगों ने स्ट्रिंग वाला वेव लिया था। अभी अपना लॉजिक चेंज हो गया ना, अभी हम लोग ऑर्बिट ले रहे हैं, ऑर्बिट के, अभी यहाँ पे स्ट्रिंग देख रहा है ना, तू यहाँ पे स्ट्रिंग देख रहा है तो स्ट्रिंग के रिलेटेड n लेगा। अभी यहाँ पे क्या देख रहा है, तू ऑर्बिट देख रहा है, तो ऑर्बिट में इंपॉर्टेंट क्या है, n। तो सर एज पर द कंडीशन हम लोग ने बदल ली सर। हाँ, तो हाँ कंडीशन सर। के हिसाब से n को मॉडिफाई करना पड़ता है। हाँ ओके, सर। महक, हाँ आई सर एम समझो। रिमूविंग यू। Sir, lecture over, no? क्या क्या हुआ, 9:30 तक लेक्चर्स होते हैं, क्या Oh, लेक्चर? I thought it was over. इसके लिए I switched it off. हाँ, काहे का ओवर? And also you said this is also over. No, your chapter for No, now. who told you that it's over? Okay, in fact, the fun part is Sir. now